ओके। करेक्ट। एक चीज सबसे पहले, रिज्यूमे खुद का बनाओ। हाँ, सीवी रातों रात मत बनाओ। हो सकता है एक दो स्टूडेंट सिलेक्ट हो भी जाए, कभी 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए, बट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं। मैं जनरलाइज वे में बता रहा हूँ। सेकंड, अब रिज्यूमे बनाना कैसे, एक चीज क्लियर हो गई, बनाना है, ठीक है, खुद का बनाना है, खुद के शब्दों में बनाना है, खुद को रिप्रेजेंट करते हुए बनाना है। सेकंड, अब बनाना क्या है उसमें, तो ये चीज है। Greetings everyone. Welcome to UC News. Today, I, Chitrang Jadhav, I'm here with Deepak Probal sir of our college. We'll be talking about the placement issues and resume issues and everything else related to such things, and solving a few questions from our seniors and as well most of us have. So, please start with a brief introduction, sir. I'm Professor Deepak Porwal, currently working in TICUB project in UEC General Electrical Department. Okay? I completed my masters from 2013 to 15 in V90 Nagpur, NIT Nagpur, okay? And I completed my BTech Engineering B from 2009 to 2013 in Ujjain Engineering College, that is this institute. Okay? And basically I'm from Neemuch, okay? And currently I'm also involved in other research activities, okay? Like renewable energy and voltage profile and reactive power requirement in a smart grid projects. Okay, sir. You said you were an alumni of our college. Sir, is there anything that you see as a big difference from now and then? And after you have decided to, as a teacher, join as a professor in the UEC college itself? I will say from 2009 to 13, there were fees. Okay? Then I visited this institute in 2016. Okay? I came as an alumni. At that time, I didn't join as assistant professor here. I joined in January 2018. Okay? So as an alumni, I came once in 2016. Okay? So I see the outer interior. It was changed. It changed a lot. Okay. I will say TICUB project has given boost to the change, okay, in this last 3 to 4 years. Okay. But this is not the only thing that from 2018 everything has changed. No, change was everywhere. When we were studying, some things were changing. Then when we left in 2013, then also things were coming in picture. When I visited in 2016, I see the outer interior that changed a lot. I saw here when I visited as an alumni. I saw podium, smart classes, good benches here. I was very happy. I visited in 2016. So only TICUB project has given a more potential, more speed, more velocity to this change. But yes, from 2009, the time when I joined, I took admission 2009 September. Okay, from that moment, if we go, let's say 12 years back, then it has changed a lot. Okay, the students may not see those pictures, we may not have those videos of 2009, 7, but yes, it has changed. Okay, sir. Now coming back to the topic of our interview today. Sir, would you please enlighten us with what should a student as a third or fourth year think about his future? How should he choose between the choosing a career or placement or a higher studies or just giving gate? So what should a student choose and what should he keep in mind while choosing these things, between these things? When you get pass out from second year, okay, and you enter into third year, which is 5th semester, then you have to decide whether really you want to opt for higher studies or not. Okay, higher studies are the requirement according to your job profile and whether you will get the appropriate package with higher studies or not. Okay, let us say I give an example of MBA. Okay, some student prepare for CAT exam from right from second year, even you will say first year. CAT MBA students are totally dedicated towards from second year, third year, because they have a projection with their. I'm audible? Yes, sir, you're audible. Okay. I'll say give example of CAT student, MBA student. They have a projection for better package, better lifestyle, okay, and grooming outside exposure. So they start preparing from second year. Okay. Now I'll go to core part, that is electrical. That is why you opted electrical, mechanical, civil. Okay. Few students, let's say out of 60 batch student, 2, 3 student, 5 student go for MS or MTech program. Okay, and whether are they really passionate about MTech or master's degree or not? Okay, and what they have projection after MTech. Okay, let us say you get passed out in 2021. Okay, and if you are getting a job, okay, if you are getting a job right now, let's say 20, 25,000, 30,000, 40,000, okay, and
let us say you have a projection that no, I would spend more 2 years in some NIT, IIT or some abroad, and where I want to see after 2 years. Okay, will I go with this 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 salary? Will I go with this after 2 years? Where will I go? And if I go for masters, where will I stand? Understanding my point? Yes, sir. And yes, some students are really passionate about going for master just to have expertise in some dedicated field. Like in electrical, we have power system, power electronics, control system. So yes, some students have in third year, final year, they get some inclination towards technical subject, some specific part, like let us say some robotics, let us say some VLSI. Okay. So some student want to study in those subjects in masters with some good, more better institutes, to have expertise, to have good global exposure in them. So you should look whether you are really inclined towards going for expertise, specialization or not. Okay? Or there may be chance that no, your requirement current is no, you have to go for a job. Okay? You want to go for a job. Maybe you are driven for masters, but let us say there are some financial restrictions, there are some family responsibilities. That is why you're opting, first of all, a job. Okay, let us say 6 months, 1 year, 1.5 year, 2 year. But you are inclined more about specialization. So yeah, it depends on whether the student, whether he is really right now ready for the masters or not. Okay, sir. करेक्ट. तो हम थोड़ा हिंदी में बात करते हैं. और मैं ये भी बता दूं, मैं भी हिंदी मीडियम स्कूल से ही हूँ. मैं प्रॉपरली नीमच से हूँ. आप रतलाम, मंदसौर और जो नीमच का बेल्ट आता है सबने देखा होगा. और जो विक्रम सीमेंट, आदित्य बिरला सीमेंट सुना होगा आपने. कुछ लोग नीमच से जरूर होंगे, मंदसौर से जरूर होंगे, तो उन्होंने नाम तो सुना होगा. और वहां पर आदित्य बिरला हायर सेकेंडरी स्कूल है हिंदी मीडियम का, वहां से हम पढ़े हुए हैं. तो हिंदी मीडियम अच्छे से आता है पूरी तरीके से. कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर रखेंगे. करेक्ट. यस, कंटिन्यू. ओके सर. नाउ आई वुड लाइक टू से सर, अब हम लोग की मतलब आपने बता दिया कि प्लेसमेंट्स हो गए, ये हो गया, अपन ने डिसाइड कर लिया. सर अब प्लेसमेंट करना है, अब मतलब कंडीशन नहीं है, ठीक है, अभी जब क्राइसिस चल रहा है पूरा अपना कोविड के चक्कर में, एंड एवरीथिंग इज जस्ट हे वायर. सो अपने को मतलब देखना पड़ेगा कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, अपन इंजीनियर्स हैं, तो पेरेंट्स ने बहुत इन्वेस्ट किया अपन ने, मतलब अपने को फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं. तो सर प्लेसमेंट्स के टाइम पे व्हाट शुड अ स्टूडेंट स्टार्ट विद? लाइक फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड कि हाँ, रेज्यूमे बनाना है अपने को, है ना, कि रेज्यूमे चाहिए अच्छा, तो शायद कंपनी बेटर देखे अपने को. तो सर रेज्यूमे में कैसे करना है काम? हाउ शुड वी वर्क? चलिए मैं एक रैंडम गैस लेके चल रहा हूँ कि आप किसी भी ब्रांच से हो, बट प्रोवाइडेड आप किसी भी ब्रांच से हो, आप कोई भी जो पहली कंपनी आना चाहती है, लेट इट बी सर्विस बेस्ड, लेट इट बी सम मार्केटिंग, सम कोचिंग बेस्ड, लेट इट बी कोर, लेट इट बी सॉफ्टवेयर. के मैं सिनेरियो जानता हूँ इस कॉलेज का कि सबसे पहले स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि वी हैव टू सिक्योर अ जॉब. कोई इलेक्ट्रिकल बेस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी स्टूडेंट होता है, फर्स्ट ही हैज टू सिक्योर अ जॉब. कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेलाइज्ड हो सकते हैं and they may have a preference, okay? But most of the student, I will say, go for a job. Okay? अब जब जॉब आता है, okay? अब लेट अस से कोई कंपनी आ जाती है आपकी सॉफ्टवेयर. okay? So will you agree, आप एग्री करोगे इस चीज पर कि जो आपका इलेक्ट्रिकल का रिज्यूमे रेडी है, okay? जो आपका इलेक्ट्रिकल का रिज्यूमे रेडी है, जो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स है, क्या वो टीसीएस अपने फील्ड के लिए रिलेट कर पाएगी? TCS may have projects, okay, some client-based projects in European country, Australia, US, okay, and their requirements may be different. Their requirements may be, you may know at least basic of C, C++. मैं तो अभी हायर लैंग्वेजेस पे जा ही नहीं रहा हूँ. okay? ये एटलीस्ट ये इंटरव्यू उनके लिए जो जनरलाइज वे में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सबसे हो सके. सो हमें एक चीज पता होती है ना कि हमने 11th-12th में एटलीस्ट C, C++ सीखा है. यस और नो? यस सर. हम हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, एटलीस्ट 11th-12th में हमारा C, C++ होता है. okay? बट नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि अगर कोई सॉफ्टवेयर कंपनी पहले आती है, और कुछ होता है एक्चुअली इंस्टीट्यूट्स में वैसा, तो ऐसा तो नहीं है ना C, C++ हो गया, इसके बाद लेट अस से पाइथन आ गया है, जावा आ गया है, आपको .NET हो गया है, HTML है, और कोई भी, इवन व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे आर डीलिंग विद. आप एक चीज एग्री करते हो कि कोविड पीरियड के बाद जो प्रोजेक्ट्स कंपनी को मिलते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं. यस सर. Yes or no? Yes, sir. Some of the service-based companies, some of the software-based companies may be working in the field of, let us say, ki, how should be the workplace? How should be the workplace? How should be the arrangement of employees?
yes or no? Yes, sir. Correct. Or how should be a security management system of certain banks? जो हमारी कंपनीज होती है ज्यादातर उनके क्लाइंट्स को रिक्वायरमेंट क्या है? कुछ जगह हम लोग देखते हैं ना, अभी आप लोग जैसे मोबाइल्स पे कैप्चा आता है हमारा, Yes. कुछ ओटीपी डबल डिजिट लेयर सिक्योरिटी, आपको नहीं लगता इनके पीछे कुछ तो कंपनीज काम करती होंगी? ऐसा तो नहीं जस्ट छोटा सा कोडिंग चल रहा है। आप इवन अगर व्हाट्सएप देखते हो तो ऑटो वर्ड आता है, ऑटो करेक्ट अपना वर्ड, Yes, sir. व्हाट यू आर टाइपिंग नेक्स्ट। ओके, सो आपको एक चीज देखनी है कि ओके हमें C++ आता हो बेसिक्स में, ये मैं सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात कर रहा हूँ, C++ आता हो, पर कुछ तो हमारे रिज्यूमे में ऐसा दिखे जो उन्हें लगे कि हाँ दिस पर्सन लेट इट बी फ्रॉम सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बट ही हैज सर्टेन बेसिक अबाउट द कोडिंग्स। करेक्ट। नाउ कमिंग टू द मेन कोर ब्रांच, क्योंकि फिर ऐसा नहीं हो कि सारी सर एक ब्रांच है सॉफ्टवेयर की, बट बाकी जो कोर है इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, केमिकल हो गया। अब यहाँ पर भी एक चीज आ जाती है जो Yes, sir, you're audible. अब यहाँ पर भी जो कंपनीज आ रही है, लेट से पहले अज्यूम कर ले कंपनीज आ रही है, तो हमें एक चीज जरूरत है एटलीस्ट हम लोग ये तो आइडेंटिफाई कर पाए कि वो कंपनी किस स्टेट में लोकेटेड है। Yes. Am I right or not? Yes, sir. Let it be some chemical company. It may not be necessary that chemical company, chemical fertilizer company is located in MP. It may be based in some Gujarat. It may have requirements in Maharashtra. Okay? So एक तो उनके प्रोजेक्ट्स क्या चल रहे हैं, सबसे पहले जब आप कंपनी का विजिट करो, जब आप कंपनी की प्रोफाइल या इंटरव्यू में अपीयर होने वाले हो, एटलीस्ट एक चीज विजिट करो कि व्हाट आर देयर प्रोफाइल्स। तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? ये मैं फाइनल ईयर में नहीं करने को कह रहा हूँ, दिस यू शुड स्टार्ट फ्रॉम सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर कि कंपनी की प्रोफाइल कैसे देखी जाती है। गेटिंग माय पॉइंट? और एक चीज, जब आप वेबसाइट्स विजिट करें, यू सी द जॉब प्रोफाइल, यू डोंट सी द पैकेज कितना जा रहा है, 3 लाख 5 लाख 10 लाख, नहीं, यू सी द प्रोफाइल, व्हाट काइंड ऑफ प्रोफाइल, आर यू गेटिंग अ फ्लोर इंजीनियर, आर यू गेटिंग अ लीड इंजीनियर, तो आप प्रोफाइल देखो पहले, तो उसके हिसाब से अपना फिर स्किल्स जो रहेंगी या उनके पास जो रहे। चीज मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स क्या होता है जनरली, जैसे कोई किसी का इनिशियल पैकेज लग जाता है, यू आल्सो सी, आप एक तो रिक्वायरमेंट जो मैंने आपको बताई सबसे पहले फैमिली सर्कमस्टेंसेस, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन, उसके बाद अगर थोड़ा प्रायोरिटाइज, मतलब एक कंपनीज भी कि हमारी ब्रांच से रिलेटेड है या नहीं है, उसके बाद एक फिल्टर आप थोड़ा और पुट कीजिएगा कभी भी कि ये कंपनी में ये प्रोफाइल पर मैं कितने साल तक रहूंगा। अच्छा, कुछ कंपनीज आप ज्वाइन कर लेते हैं और उन्हीं प्रोफाइल पर आप अगले 5 से 10 साल तक वहीं पर रहते हैं। सो फर्स्ट फिल्टर जो आपके हो सकते हैं, किसी का फैमिली रेस्ट्रिक्शन, फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन, फिर ब्रांच से रिलेटेड प्रायोरिटीज हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल वाला कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर में नहीं जाएगा, वो रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उसके प्रोजेक्शन के हिसाब से जा सकता है, एंड वेदर ही इज लुकिंग फॉर अब्रॉड अपॉर्चुनिटी, ऑन साइट अपॉर्चुनिटी और नॉट। बट उसके बाद एक चीज ये भी देखिएगा कि इस प्रोफाइल के साथ मैं कहाँ पहुंचूंगा, वेयर विल आई लैंड विद दिस प्रोफाइल। एंड आफ्टर दिस रिज्यूमे फाइनली आता है कि आप जब कंपनी एक बार देख लें कि ओके आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 2 वीक दिस कंपनी इज विजिटिंग माय कॉलेज, सो उनकी वेबसाइट के हिसाब से और अपनी स्किल्स के हिसाब से, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि अपनी स्किल्स उनकी कंपनी के हिसाब से बनाओ, आपकी ऑलरेडी जो एक्वायर्ड स्किल्स हैं, आपने ऑलरेडी जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स ली है, आपने ऑलरेडी जो माइनर प्रोजेक्ट या मेजर प्रोजेक्ट्स किए हैं, या आपने और भी कोई अपना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड अगर सब्जेक्ट्स में बनाया है, तो फिर अपनी सारी स्किल जो आपकी ऑलरेडी एक्वायर्ड है उन्हें उस कंपनी के इंटरेस्ट में प्रोजेक्ट करो। अच्छा, तो सर मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, see listen, I'm not saying that according to their requirements you build your resume, whatever you have gained। आप एक चीज तो जानते हो, एटलीस्ट 1 वीक या 2 वीक में अगर कोई कंपनी विजिट करने वाली है तो आप कोई ऐसी स्किल तो ऐड नहीं कर सकते ना 1 वीक या 2 वीक में। सही बात है सर, कि जो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, नहीं ना। एंड they get to know, they are HRs जो आपके इंटरव्यू आते हैं, टेक्निकल राउंड्स लेने आते हैं, they get to know whether you are faking some information or not। So better be authentic in your HR, in your interview, in technical round, in your GDPI, whatever personal interview goes। But yes, my thing is whatever skills, projects, internships you have got, try to project your all these skills, all this data in terms of their interest, in terms of their requirement। तो सर मतलब आप ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मैंने कोई ट्रेनिंग करी है जिसमें मुझे डेटा हैंडलिंग का भी यूज़ हुआ था,
तो यहाँ प्रोजेक्ट भले ही कुछ भी हो, कोडिंग से रिलेटेड हो, डिबगिंग हो, बट उसमें डेटा एंट्री का मैंने यूज़ किया था। तो अभी कोई कंपनी आ रही है, इसकी रिक्वायरमेंट में डेटा हैंडलिंग है, तो मैं शो करूँ कि उस प्रोजेक्ट में मैंने ये काम भी किया था, ना कि वो डिकोडिंग यस, करी थी मैंने। यस सर। लेट अस से मैं कोर ब्रांच का एग्जांपल दूंगा, फिर मतलब ऐसा लगेगा कि सर सॉफ्टवेयर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। मैं कोर ब्रांच का एग्जांपल दूंगा। आप में से कुछ लोग तो एटलीस्ट इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप में कोई सीमेंट प्लांट तो विजिट करते होंगे, है ना? सीमेंट प्लांट हो गया, कोई टेक्सटाइल मिल हो गया, किसी ने कोई थर्मल पावर प्लांट विजिट किया होगा, किसी ने सिविल से रिलेटेड कहीं कोई डैम बन रहा होगा, कोई ओवरब्रिज बन रहा होगा, कोई फुटपाथ बन रहा होगा, कोई रोल डिवाइडर, कुछ हाईवे बन रहा होगा, वहीं पर विजिट किया होगा। आप सब लोग एग्री करोगे, आपने ये जितनी चीजें मैंने बोली हैं, भले आपका कोई सीमेंट प्लांट हो गया, कोई भी इंडस्ट्रियल विजिट, आपने एटलीस्ट ये तो देखा कि वहां कहीं ना कहीं एक मॉनिटरिंग सिस्टम होता है, एक मॉनिटरिंग सेक्शन होता है जो पूरी प्लांट की या पूरी चीजों की एक्टिविटीज देख रहा होता है। कोई सॉफ्टवेयर तो इन्वॉल्व है, हाँ सर। मेरे कोई सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व है, कहीं पर डेटा लॉगिंग हो रही है, कहीं पर डेटा स्टोरेज हो रहा है, यस और नो? यस कहीं सर। पर आपको अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना पड़ रहा है। आजकल तो और डिजिटल टाइम आ गया, तो यू आर सेंडिंग व्हाट्सएप इमेजेस की लाइव रीडिंग ये है, हाँ। लाइव कैलकुलेशन ये है, लाइव मेजरमेंट ये है, यस और नो? यस सर। अब आपका, जैसे आपने चित्रांग बताया कि यू हैव डन समथिंग इन डेटा साइंस, तो हाउ वुड यू रिलेट योर स्किल, ऑलरेडी एक्वायर्ड स्किल, विद द टास्क दे हैव? ओके सर, तो जैसे आपने बोला, अगर उस हिसाब से लूँ तो आई वुड से कि मुझे इतना मालूम है कि उसकी चार्टशीट कैसे बनानी है। अगर मुझे मंथ एंड में बोला कि क्या था पूरा, उन लोग का प्रोसीजर क्या था, क्या लॉसेज हुए, क्या नहीं हुआ, सो आई विल बी एबल टू शो दैट इन अ डेटा हैंड, बिकॉज आई एम क्वाइट अवेलेबल इन डेटा हैंडलिंग स्किल्स, तो वो मैं दिखा पाऊँगा, तो वो शो कर सके। एक चीज और है पता है, यस एक सर। चीज और स्टॉप यू हियर, कि कंपनीज आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट डेटा यू हैव कलेक्टेड, कंपनीज आर इंटरेस्टेड व्हाट कंक्लूजंस यू हैव ड्रॉन आउट ऑफ दोस डेटा। ओके। वुड यू एग्री विद दिस? यस सर। करेक्ट और नॉट? यस। Companies are not at all interested how much information you have, how much wisdom, how much experience, or how much data you have. Companies are expecting you to draw concrete or solid conclusions, solid results from that information, from that data. Okay? What better inputs you can give to make their system more effective, more productive, more profit making, or less time consuming? ओके। Okay? सो Industries एक सिंपल, मैं एक शब्द में डिफाइन करूं, इंडस्ट्रीज वर्क ऑन reducing their time, less consumption of time, less efforts required with less number of employees. अच्छा, सो दे ट्राई टू बी So, प्रॉफिटेबल। तो अभी आपने जैसे बताया चिंद्रा कि आप डेटा साइंस में कुछ आपने कोई ट्रेनिंग लिया है, सो कंपनीज मे बी लुकिंग, let's say you are electrical, from electrical, okay? यस So सर। companies may be looking for an electrical engineer who can do the job of 2-3 people at a time. Okay? हाँ। He can collect the data from the site, he can collect the data from mine, he can collect the data from production section. Okay? तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ओके कुछ फील्ड सेंसर्स की जरूरत होगी, कुछ वहां पर डेटा लॉगिंग, कुछ कैमरास की जरूरत होगी, कुछ मॉनिटरिंग सेक्शन की जरूरत होगी। फिर उनको एक रिक्वायरमेंट हो सकती है कि नहीं, यही इंजीनियर जो चित्रांक है, he should also make the analysis report. ओके, जो एंड में रहेगी कि हाँ। He should say, this Chitrang or this student or this engineer should also see the gather the information and give us the relevant conclusion. ओके। तो एक पहले जो प्रोफाइल्स होती थी ना कि एक कोई कलेक्ट करेगा डेटा वहां से डाक बुक में या वहां से किसी रजिस्टर में एंट्री करके लाएगा, then some authority will be here who will be giving the instruction, and there will be then third person who will be executing the instruction. ओके। Getting my point? यस सर। सर यहाँ तो तक अभी किसी को डाउट है, हम ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, हाँ। यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट है, कुछ है कि नहीं, ओके नहीं समझ में आ रहा, क्लियर हो रहा है? You me? Then good. नो सर, नो डाउट। Okay, correct. सर मैं पूछना चाह So रहा। yes, यस सर। yes, Chitrang. सर मैं बोल रहा था कि अपने अब रेज्यूमे में ये हो गया कि अपने को शो करना है कंपनी को जो अपनी ऑलरेडी स्किल्स एक्वायर्ड हैं, तो वो अपने को उनके इंटरेस्ट में शो करनी है, और ऐसा शो अपने को स्किल्स भी एक्वायर करनी है कि अपन लोग 2-3 लोगों का काम एक साथ कर सकें, ताकि उन लोग को एफर्ट कम डालना पड़े, एंड आई वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट दे चूज। यस सर। Yes. सर अब ये तो चलो हो गया, रेज्यूमे हो गया, अब नेक्स्ट सर कि प्लेसमेंट में एग्जैक्टली होता क्या है डिटेल में, और अपना टीपीओ सेल कैसे काम करता है सर, और इन सब चीज़ों पर थोड़ी बातें करें अब नेक्स्ट। Okay, correct. मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि जो राउंड्स होते हैं, जो स्टूडेंट
स्टूडेंट को फेस करने, क्योंकि स्टूडेंट को टीपीओ से रिलेट नहीं कर सकता मैं अभी। स्टूडेंट को सबसे पहले जो उसकी जॉब के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जिन्हें स्टेप्स के थ्रू जाना है, ऑडिबल? यस सर। स्टूडेंट को जिन स्टेप्स के थ्रू जाना है, आई विल बी टेकिंग इंटरेस्ट इन दैट। सबसे पहले एक राउंड होता है आपका कि आपके पॉइंटर्स कितने। सबसे पहला फिल्टर जो पुट किया जाता है दैट इज अबाउट पॉइंटर्स, लेट इट बी 6.5 पॉइंटर फिल्टर, 7.5 पॉइंटर होल्डर, 7.0 पॉइंटर होल्डर, 8 पॉइंट होल्डर। ओके, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल द कंपनीज हैव फिल्टर अबाउट दिस पॉइंटर्स। सॉफ्टवेयर कंपनीज, let us say, आप जानते हो when you give interview for TCS, when the TCS come, Infosys come, there may be priority for top 5 student. They need not to give any written test. Do you agree with this? Yes sir. In every branch there may be top 5 student who need not to give any written test. They will directly appear for the interview, okay, and followed by GDPI in other sections, okay? But yes, correct. So अब पहला राउंड जो है हमारा, पहला जो फिल्टर पुट किया जाता है वो है सबसे पहले CGPA पॉइंटर्स का। तो एक स्टूडेंट को मैं जनरलाइज मैं कहता हूँ, आप अपने पॉइंटर्स पे फर्स्ट ईयर से बहुत मेहनत कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कवर हो जाएगा, फाइनल ईयर में कवर हो जाएगा। एवरीथिंग कैन नॉट बी कवर्ड इन लास्ट मूवमेंट्स और लास्ट सेमेस्टर्स। ओके, मार्क माय वर्ड्स, you have to keep a track on your pointers from right from first year, first semester, second semester, where are you lying? Okay, do not commit this mistake of following your pointers in 6th semester, 7th semester, 8th semester. ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट। ओके, ये मैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने के लिए कह रहा हूँ कि जहां अगर 11 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 25 स्टूडेंट अगर एलिजिबल होते हैं किसी रिटर्न टेस्ट में बैठने के लिए, किसी कंपनी में सिट करने के लिए, अपीयर होने के लिए, अगर ये मेरे वर्ड्स को आप मार्क कर लोगे तो दिस numbers may rise. I'm not saying all 60 will get the eligibility, okay? But this number may rise if they keep track on their pointers. Okay. Second comes is written test. Every company, they have a written test. Okay, there may be priority for top 5 student, but not for all companies. ऐसा नहीं है कि core company भी यही करती है। okay? अच्छा। So core company में written test देने के लिए, core companies या software में, आप एक चीज तो सबसे पहले जानते हो कि यू आर प्रिपेयरिंग गेट एग्जाम ऑलरेडी। मैं एक चीज स्टूडेंट को कहता हूं कि डू नॉट हेवीली डिपेंड ऑन गेट एग्जाम रिजल्ट और PSC और IIT NIT। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। डू नॉट हेवीली डिपेंड ऑन गेट एग्जाम रिजल्ट की मेरी रैंक EIR 100 आनी चाहिए, 500 आनी चाहिए। डू नॉट डिपेंड ऑन PSUs, डू नॉट हेवीली एक्सपेक्ट एन PSU IIT NIT, बट एटलीस्ट प्रिपेयर फॉर दिस गेट एग्जाम। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट गेट एग्जाम का ये होता है कि आप टेक्निकल लेवल पे, एटलीस्ट थ्योरेटिकल टेक्निकल लेवल पे पूरी तरीके से एक वेल नॉलेजेबल पर्सन कहते हैं ना, जिससे पूरी बैकग्राउंड, जिसको 4 साल की इंजीनियरिंग का कहते हैं, जितने 10-12 सब्जेक्ट्स गेट में जो आते हैं आपके, आप उसमें सफिशिएंटली कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो कि नाउ यू हैव टेक्निकल कैपेबिलिटी, योर टेक्निकल एबिलिटी। Am I right or not? Yes sir. So every branch student, I am not saying कि CS को नहीं जाना चाहिए, CS को let us say कि कोई सॉफ्टवेयर फील्ड ले लेगा, नहीं। Every branch student should prepare and appear for the GATE exam। क्यों? इससे आपका टेक्निकल पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, कुछ MBA एस्पिरेंट्स अलग हो सकते हैं, I will not go for that। तो आप एक बेस आपने पॉइंटर का बना लिया राइट फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड बेस आपने बना लिया अपने रिटर्न टेस्ट का। जो आप टेक्निकल सब्जेक्ट्स अगर आप रोज भी डेली हार्डवर्क कर रहे हो, सेमेस्टर वाइज हो जाएगा। नाउ कम्स जब आपका लेटर से अज्यूम करते हैं उन स्टूडेंट्स का रिटर्न टेस्ट क्लियर हो जाता है। ओके, जस्ट मिनट। लेट अस से उन स्टूडेंट्स का रिटर्न टेस्ट जिस भी ब्रांच में, जिस भी कंपनी में वो अपीयर हुए हैं, दे गेट क्लियर्ड दिस रिटर्न। अब उसके बाद राउंड कौन सा आता है आपका? इंटरव्यू का राउंड होता है। ओके। एंड इंटरव्यू राउंड गोज विद, जो आपका इंटरव्यू राउंड होता है पर्सनली होता है, इंडिविजुअल लेवल पर होता है। अच्छा। करेक्ट? उसमें आपकी सारी टेक्निकल एबिलिटीज जो आपने रिटर्न टेस्ट में दी है, ओके, मार्क माय वर्ड्स, जो आपने रिटर्न टेस्ट में जितनी भी आपने आंसर्स करेक्ट दिए, 25 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड या कन्वेंशनल, कंपनीज नो वन थिंग कि आपका थ्योरेटिकल नॉलेज था। हाँ। Do you agree with this? Yes sir. Companies know that this was your theoretical knowledge completely. Okay. Now they go for interview. Have you visited practically any field level or any company, any organization or not? ऐसा हो सकता है आपको डायोड, मैं इलेक्ट्रिकल के सेंस में बात कर रहा हूँ, आपने डायोड तो 12th से पढ़ा होता है। Yes sir. आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट 11th 12th से फॉलो किया होता है, आपको केमिस्ट्री के बारे में पता होता है।
पर इंडस्ट्री में अभी प्रैक्टिसेस में क्या है, और आपने अगर कोई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ली है लेट्स से 4 सेमेस्टर के बाद 6 सेमेस्टर के बाद, तो आपने वहां ऑब्जर्व क्या किया कि करेक्ट आप जानते हो करंट की रेटिंग, हम करंट की जो यूनिट है हम एम्पियर में देते हैं, बट हम इलेक्ट्रिकल में जब हैं हमने कोई सबस्टेशन विजिट किया, कोई कंपनी विजिट की, तो क्या हमें ये पता है कि कोई ट्रांसफार्मर अगर है वहां पर तो उसकी केवी रेटिंग कितनी है, उसका एम्पियर रेटिंग कितना है। तो हाँ कंपनी जो है इंटरव्यू में आपसे ये देखती है कि आप जब फील्ड लेवल पर उतरोगे तो आपको उसका पहले कोई बैकग्राउंड क्रिएट है या नहीं, कोई फाउंडेशन बना हुआ है या नहीं। यस और नो? यस सर। सो सर मतलब आई गिव सॉरी, सिंपल एग्जांपल की, हाँ यस चित्रा। तो सर आप इसमें ये बोलना चाह रहे हैं ना कि अगर जब अपन लोग वो टेस्ट करेंगे अपनी टेक्निकल नॉलेज, तो अपने को विल दे हैव टू गिव अस ट्रेनिंग और नॉट, ये चेक कर रहे हैं आई गेस कि रिपीट रिपीट। सर मतलब वो ये चेक करना चाह रहे हैं ना कि उनको अपने वो टेक्निकल बैकग्राउंड के होने के हिसाब से ना होने के हिसाब से ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि नहीं फील्ड वर्क के लिए। नो, ट्रेनिंग विल बी एनी हाउ गिवन। ओके आप भले इंटरव्यू में टॉप कर जाएं, आप रिटर्न में टॉप कर जाएं, यू विल हैव टू गो थ्रू जीईटी पीरियड। जीईटी ओके पीरियड इज कॉल्ड ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग पीरियड। आप ओके मार्क करो, आप सॉफ्टवेयर भी ज्वाइन करोगे, आप कोर भी ज्वाइन करोगे, दोनों में आपका 6 मंथ हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है जीईटी पीरियड, उसको आप कहते हैं जीईटी ट्रेनिंग, अच्छा ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, जिसमें आपको केवल ट्रेनिंग लेवल पर रखा जाता है, आपको कोई वर्क नहीं दिया जाता। अगर मैं कुछ सॉफ्टवेयर से जो रिलेट कर सकते हैं, उन्होंने अगर अपने सीनियर से कभी कंसल्ट किया होगा, फर्स्ट कभी आपको 6 मंथ 3 मंथ केवल डेस्क वर्क दिया जाता है, बेंच वर्क दिया जाता है। हम्म आपको केवल ऑफिस का इन्वायरमेंट हो सकता है, किस तरह से वर्किंग होता है, किस तरीके से वहां मतलब डील होता है प्रोजेक्ट्स के साथ, ये सॉफ्टवेयर। और कंपनी में, कोर कंपनी में भी आप एटलीस्ट इस सुपरवाइजर का अगर आपको रोल मिलता है 1 साल बाद 2 साल बाद, या सेक्शन हेड का, डिपार्टमेंट हेड का, तो आज आपको ये सीखने की जरूरत है 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए, कि जब आप इंजीनियर की पोस्ट पे जाओगे 1 साल बाद, यस तब आपके रोल्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, और आपको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो अभी तो आपको नहीं पता ना स्टार्टिंग में। यस सर फॉर दैट दे रिक्वायर इन इंटरव्यू कि आपको एटलीस्ट कुछ कुछ चीजें फील्ड लेवल पर आपकी क्लियर हो, अच्छा आपने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए हो, आपकी कुछ मेंटेलिटी हो फील्ड लेवल के इंजीनियर की। हम लोग क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ सीधे, अभी हम लोग होते हैं स्टूडेंट फेज में। हाँ यस और नो? यस सर स्टूडेंट फेज में हम लोग एक हो सकता है कि वी आर लेस प्रोफेशनल, हम्म वी आर लेस अवेयर। हाँ मानते हो ये नहीं चीज आप यस सर लोग? मानता वी हूँ आर लेस मतलब प्रोफेशनल, वी मे बी टाइम कंज्यूमिंग, बट व्हेन वी एंटर इनटू इंडस्ट्री दे रिक्वायर द शेड्यूल, we have to give a schedule, okay? We have ओके to be punctual, okay? For that they require this abilities, okay? ओके सर। Next, सर तो जीडी के बारे में डिस्कस करें थोड़ा सा, आपने उसको आई थिंक सो रह दिया, छोड़ दिया okay, था। जी, आपके देखिए कुछ राउंड्स जो होते हैं, जो एक मैंने अभी आपको टेक्निकल इंटरव्यू कहा, हाँ ये टेक्निकल इंटरव्यू, और इसके बाद एक बार होता है जीडी, दैट इज ग्रुप डिस्कशन, एंड अगेन पर्सनल इंटरव्यू, सो ओके देयर मे बी डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस। कई बार क्या होता है जीडीपीआई पहले हो जाता है, कई बार इंटरव्यूज बाद में होता है जो टेक्निकल राउंड का है, अच्छा एंड मोस्टली ये प्रेफर किया जाता है कि आपका टेक्निकल इंटरव्यू पहले हो, आपकी टेक्निकल एबिलिटीज का एक फिल्टर और लगा दिया जाए, उसके बाद आपकी जीडी और पीआई, दैट इज ग्रुप डिस्कशन पर्सनल इंटरव्यू का राउंड रखा जाए। अब जीडी क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन, वेदर you are aware about the peripheral, whether you are aware about the environment, whether you are aware about what's happening around you, ओके and what thought process you have। अच्छा आपको क्या हो सकता है, इंडस्ट्रीज में देयर माइट बी सम कॉम्प्लिकेशन, सम प्रॉब्लम, एंड व्हेन यू गो फॉर लेट अस से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो वहां पर एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जैसे वहां पर आपके डिपार्टमेंट्स में भी कई बार डिस्कशंस होते हैं किसी प्रॉब्लम को लेके। सो जीडी में ये है कि all the relevant information available to you about certain problem, what approach you have, what thought process you have। ओके एक चीज एग्री करते हो, कुछ लोगों का चीज होता है, कुछ लोगों का अप्रोच होता है केवल प्रॉब्लम को डिस्कस करना, हाँ और एक दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम के डिस्कशन से ज्यादा, और डिस्कशन सफिशिएंट डिस्कशन से ज्यादा उसके बाद अगला स्टेप लेना जरूरी लगता है, वो होता है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। यस सर एग्री विद मी? यस सर बिल्कुल एग्रीड सर। सो जो अवन में ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में आपका ये एक जो देखा जाता है बॉडी लैंग्वेज, जब आपके सामने 5-10 कैंडिडेट्स और रहेंगे, आपकी ब्रांच से लेटर से टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लिए 7 स्टूडेंट्स ने, 10 स्टूडेंट्स ने, बट उनकी रिक्वायरमेंट्स के केवल 2 कैंडिडेट्स की, सो आउट ऑफ 7
स्टूडेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ब्रांच, लेट अस से सिविल और इलेक्ट्रिकल, उनका रिक्वायरमेंट केवल 2 है. सो दे गो कि उनको एक चीज तो क्लियर है, सबको टेक्निकल तो क्लियर है. हाँ. बट जब ये दो कैंडिडेट्स को हम लोग आगे प्रोजेक्ट करेंगे अपनी कंपनी में, हायर हिरार्की पर, मैनेजमेंट हिरार्की पर, तब इन 7 में से कितने ऐसे हैं जो लर्निंग को हमेशा रेडी रहेंगे, न्यू लर्निंग्स को, न्यू स्किल्स को रेडी रहेंगे. आप एग्री करते हो नहीं कि आप टेक्निकल जितना भी पढ़ लो, गेट का टेक्निकल पढ़ लो, आपने फील्ड एक्सपीरियंस ले लिया, 7 में से 1 या 2 कैंडिडेट्स ऐसे हो सकते हैं जो और ज्यादा नहीं सीखना चाहते. दे माइट बी गोइंग फॉर सेटलिंग इन लाइफ. अच्छा. They may have a saturation point coming. Okay? So companies see in your GD, in your PI, are you having certain like वो कहते हैं ना एक appetite or not for new learning. Okay, so inquisitiveness your or do you have certain communication skill, how to project your company when you're talking about, when you are employee of your company, how you're projecting your company to outside world. Okay. And second, एक last thing पे conclude कर देता हूँ. And whether you are aware about whereabouts or whatever happening in the country and global level. Okay, so ultimately do you agree or not कि आपकी कंपनी कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल नहीं तो 6 महीने नहीं तो 1 साल बाद अफेक्ट होगी, जो कंट्री में हो रहा है या जो वर्ल्ड में हो रहा है, जो ग्लोबल लेवल पर हो रहा है. yes sir. So whether you are aware about those things or not, whether you are going with current updates or not, day to day updates, and what conclusions you can make and what suggestions you can put. Okay. when you are on advisory board, और जब आप रोल पर आएंगे कि नहीं, you have to take the decision, then what decisions will you take? अच्छा, तो सर तो they also see that. और सर पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है? पर्सनल इंटरव्यू में कई बार क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यूज में कुछ चीजें हैं, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ओके. ये टेक्निकल इंटरव्यूज में भी होता है, ऐसा नहीं है कि पर्सनल इंटरव्यूज में. ये टेक्निकल इंटरव्यूज में भी आपको थोड़ा सा कहते हैं ना, कंफर्ट फील करवाने के लिए, थोड़ा इजीनेस लेवल पर लाने के लिए क्वेश्चंस ऐसे स्टार्ट किए जाते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ. फिर धीरे धीरे आपको एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है जब हम स्टूडेंट होते हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट, एंड वी आर अपीयरिंग इन इंटरव्यू, तो हम लोग क्या होता है कई बार बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना नर्वस, वी आर फीलिंग वेरी नर्वस. तो वो आपको एक पहले कंफर्ट जोन में लाने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ से उनका सिलेक्शन हो जाता है, नहीं, वो आपको एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए, इजीनेस के लेवल पे लाने के लिए, सेम लेवल पर लाने के लिए स्टार्ट करते हैं. टेल मी अबाउट योरसेल्फ, वेयर डू यू बिलोंग टू, आप क्या हॉबीज हैं. ऑलरेडी आपने सीवी में हॉबीज मेंशन कर दी, यस और नो? यस सर. ऑलरेडी योर सीवी रेडी. बट एक चीज और ही है, जब आप पर्सनल इंटरव्यू पे जाते हो, आपने जो सीवी में मेंशन किया है और आप जो फेस पर बोल रहे हो उनके, क्या वो मैच हो रहा है या नहीं? क्या होता है सीवी में कई बार देखा है ना, कुछ लोग करियर ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट, अगर 60 लोगों की बैच है तो 5 लोगों का सेम ही करियर ऑब्जेक्टिव कि हमें ये करना है, हमें अपलिफ्टमेंट करना है, टेक्निकल, सबने सेम लिखा हुआ है. सो एचआरस आर मोर इंटेलिजेंट, मोर वाइज देन यू. आपके जैसे स्टूडेंट वो रोज एनकाउंटर करते हैं. आपके जैसे स्टूडेंट से रोज हर तरह की वैरायटी के स्टूडेंट्स के साथ उनका इंटरेक्शन फेस डिस्कशन होता है. दे गेट टू नो मोर कि आप वाकई में ऑनेस्टली आपने जो सीवी में लिखा है और जब आप फेस पर बोल रहे हो वो सही है या नहीं. एग्री विद दिस? यस सर. तो पर्सनल इंटरव्यूज में जो होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी कुछ हॉबीज, फिर आपको धीरे धीरे ओपन किया जाता है कि आप और ज्यादा लेवल पे अपने आप को एटलीस्ट प्रोजेक्ट करें, क्योंकि क्या आपने इंटरव्यू में आपने टेक्निकल जो रिटर्न टेस्ट है उसमें आप पूरा अपने बारे में नहीं बता सके. वो उनकी तरफ से पेपर आया, आपने पेपर सबमिट कर दिया. टेक्निकल इंटरव्यू में जो उन्होंने टेक्निकल क्वेश्चंस पूछा, आपने उनके रिप्लाई दिए. यस सर. बट इन पर्सनल इंटरव्यू लेट अस से you might be going for some higher studies. Just a minute. You might be having some projection for higher studies. अब एक आंसर मेरा देना आप लोग, अगर आपके 9 पॉइंटर हो, आप 9 पॉइंटर होल्डर, 9.5 होल्डर है, कंपनीज को एक आइडिया होता है नहीं ये एम्प्लॉय 1 साल 2 साल बाद चला जाएगा. होगा सर, थोड़ा बहुत तो होगा ही, मतलब ऑब्वियसली कुछ नया चाहिए, बड़ा चाहिए. करेक्ट है ना? यस. कंपनी ऑल्सो नो कि what pointers you have, what skills you have, and how long you will stay there in their company. So they are seeking for the employees who will stay there at least for 3 or 5 years. आप रहे ना रहे, आप बॉन्ड साइन कर दे, कितना भी कमिटमेंट कर दें, HR नो आप कितना लॉन्गर वहां पे कितना लॉन्ग स्टे करने वाले हो. यस और नो? सो दिस थिंग्स दे गेट टू नो इन योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड. Are you really dedicated or inclined toward that company, that particular company or not? तो ये चीजें हैं. इसके बाद
जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वेयर डू यू वांट टू सी आफ्टर 5 इयर्स इन दिस कंपनी, वो कुछ कुछ क्वेश्चंस है जो चेंज भी होते हैं। आई एम नॉट सेइंग वो 10 साल पहले होते तो आज भी होते हैं, वैसा नहीं है। ठीक है। और उसके बाद एक चीज हो सकती है, जैसे आप सीवी में कई बार मेंशन करते हैं कि आपकी लैंग्वेजेस पर कहां पर है ग्रिप है। लेट अस से आई नो हिंदी, आई नो इंग्लिश, आई हैव एलिमेंटल प्रोफिशिएंसी इन मराठी। आई डोंट से मुझे कंप्लीटली मराठी आता है, लेट अस से सम एलिमेंटल प्रोफिशिएंसी इन मराठी। सो if the company gets to know this कि okay this employee, this candidate may be suitable for our branch in Maharashtra, yes or no, इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, गुजरात में नहीं है, तो एटलीस्ट आपकी जो जो स्किल्स हैं वो कम्युनिकेशन पे हो या आपके टेक्निकल में, वो सीवी में मेंशन भी करें और बताएं जरूर कि आपको ये प्रोफिशिएंसी है, इस चीज में थोड़ा बहुत आता है। अच्छा, so they can have a bit more choice on what to give you. कंपनीज देखिए, मैं पर्सनल इंटरव्यू में कहता हूँ, कंपनीज आपके बारे में बस एक चीज देख रही है एम्प्लॉयज में, आपकी टेक्निकल एबिलिटीज वो इंटरव्यू में देख चुकी है, आपका रिटर्न नॉलेज वो रिटर्न टेस्ट में देख चुकी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स और आप जो लेटेस्ट अपडेट हो वो जीडी में देख चुकी है सर। क्योंकि जीडी में आपको क्या दिया जाता है, एक टॉपिक दिया जाएगा, एक या दो टॉपिक दिए जाएंगे, फर्स्ट सम स्टूडेंट सम कैंडिडेट विल स्टार्ट, देन सेकंड विल काउंटर दैट, देन थर्ड may or may not agree with the first or second candidate, yes or no? Yes sir. So in GD, whether you are fully aware about the topic or that particular whatever the topic of discussion going, but personal interview में ये है, वो देख रहे हैं एक डेडिकेटेड कैंडिडेट, एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय जो उनकी कंपनी को कहीं ना कहीं से बिल्कुल प्रॉफिट मेकिंग, मतलब एक कहते हैं ना, एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। हाँ, so it will help the company grow. मैं नहीं कह रहा हूँ कि लाखों का पैकेज है, टर्नओवर कंपनी का तो करोड़ों में, ऐसा नहीं होता। आपको एक एलिमेंटल रूल दिया जाता है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनी, लीड इंजीनियर, देन साइट इंजीनियर के या एरिया इंजीनियर या रीजनल मैनेजर, उनके रोल दिए जाते हैं। आप कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दे सकते, बट हाँ कंपनीज ये देख रही होती है कि आर यू हैविंग सम कहते हैं ना इंक्रीजिंग हॉराइजन और नॉट, आप कंपनी को जैसे टेक ऑफ कर सकते हो या नहीं, एक पर्टिकुलर लेवल पे ले जा सकते हो या नहीं, वो देखा जाता है। आपको भले एक छोटा सा एरिया दे दिया जाए, मान लीजिए आपको पीथमपुर दे दिया, राव एरिया दे दिया, राव एरिया में छोटा सा आपको एक रोल दे दिया, आपने उससे पॉजिटिव चेंज लाया या नेगेटिव चेंज लाया, ये देखा जाता है। Sir, now I wanted to say that in our college, when we are preparing a resume, so is there a standardized way for it or a set format? मैं एक पॉइंट कहूंगा, सबसे पहले स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट से पहले हर स्टूडेंट, सारे मतलब सभी के सभी, हर स्टूडेंट अपना इंडिविजुअल रिज्यूमे बनाया। जो मैं गीसू का ट्रेंड जानता हूँ ना, कि टॉपर या सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर का एक रिज्यूमे कहीं ना कहीं सर्कुलेट होके किसी और ब्रांच से सर्कुलेट होके अपने पास आ जाता है। एंड लाइक द वे वी राइट अवर, जो कहते हैं ना, हमारी प्रोजेक्ट फाइल या लैब फाइल लिखते हैं, हम वैसे कॉपी बना लेते हैं। इसको अवॉइड करना। अब मैं आपको सीनियर के हक से भी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका सीनियर भी हूँ और फैकल्टी, तो अब मैं थोड़ा सीनियर के हक से, थोड़ा हक से बोलूंगा, क्योंकि आपके करियर के लिए ये मैटर करता है। और एक चीज होती है, सीवी रातों रात बनाया जा सकता है, पर उससे धरातल पे हमें कुछ मिलेगा या नहीं। अब थोड़ा हिंदी में भी आ जाते हैं, हिंदी मीडियम के, तो उससे धरातल पे हमें कोई प्लेसमेंट, जॉब, कंपनी कुछ मिलेगा या नहीं, बहुत फर्क है। आप सीवी किसी का कॉपी करके रख लो, करियर ऑब्जेक्टिव कॉपी करके रख लो, अपने मार्क्स लगा दो, पर उससे मिलेगा कुछ नहीं। अच्छा, तो एक चीज मैं कहता हूँ, सबसे पहले जो भी स्टूडेंट लिसन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, आप अपना सीवी खुद बनाओ। भले आपको इंग्लिश की एक लाइन भी नहीं आती हो, इंग्लिश का एक वर्ड भी नहीं आता हो, वैसे मैं मानता नहीं फाइनल ईयर तक आ जाए आपको वर्ड नहीं आएगा, इवन आएगा। आप जो इवन हिंदी में सोच रहे हो, आप उसको तो हिंदी में सोच रहे हो, अपने एक ब्लैंक पेज पे अपने सीवी को ये सोचो कि बस ठीक है मैं बायोडाटा भेज रहा हूँ, सीवी छोड़ो, आप एक बायोडाटा भेज रहे हो, जैसे होता है ना कोई रिश्ते वगैरह के लिए भेजे जाते हैं, तो ये मान लो कि रिश्तों का तो अलग है, सबसे पहले प्रोफाइल पे आ जाते हैं। तो वैसे ही आप अपने बारे में बता रहे हो, आप किसी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो जितना भी हो सके। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा परफेक्ट दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात जो हमें रखनी है अपने पास, कि सीवी खुद का बनाना है, खुद की लैंग्वेज में बनाना है, खुद के वर्ड से बनाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही डिक्शनरी के सहेजे हुए वर्ड्स ले आए सिलेक्ट करके कि ये रखेंगे तो वर्ड का वेटेज बढ़ेगा, प्रोफाइल का वेट, ऐसे कुछ नहीं होता। जब आप पर्सनल इंटरव्यू में बैठोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने वो जो वर्ड लिखा है उसको एचआर ने पकड़ लिया है। ओके, करेक्ट। तो एक चीज सबसे पहले, रिज्यूमे खुद का बनाओ। हाँ, सीवी रातों रात मत बनाओ, हो सकता है एक दो स्टूडेंट सिलेक्ट हो भी जाए, कभी 3 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाए, बट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं, मैं जनरलाइज वे में बता रहा हूँ। सेकंड, अब रिज्यूमे बनाना कैसे, एक चीज क्लियर हो गई, बनाना है।
ठीक है, खुद का बनाना है, खुद के शब्दों में बनाना है, खुद को रिप्रेजेंट करते हुए बनाना है। सेकंड, अब बनाना क्या है उसमें, तो ये चीज है। सीवी एक ऐसी चीज है, तो आप एक चीज मान लो कि आप फर्स्ट ईयर में एंटर किए हो, तो फर्स्ट ईयर में सीवी मत बनाओ। फर्स्ट ईयर में केवल अपने सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए प्रोजेक्ट करो कि सब में पास हो जाओ आप लोग, अच्छे पॉइंटर्स थोड़े बन जाएं, थोड़ा मतलब एक कहते हैं ना थोड़ा सा कहते हैं 6.5 6 या एक अच्छा 7.5 पॉइंटर जो बना लो मार्क्स, अपना वो सारे ताकि थोड़ा सब्जेक्ट सा। क्लियरेंस पे ध्यान, हाँ। वो पॉइंट सीवी पे बिल्कुल फर्स्ट ईयर में ध्यान मत रखो। ओके। सीवी बनाने के लिए सबसे पहले उसमें कुछ कंटेंट तो आपको लिखना होगा ना। हाँ। उस कंटेंट के ऊपर ध्यान दो कि अगर मैं इंडस्ट्रियल विजिट लिखूंगा तो वो इंडस्ट्रियल विजिट मैं सेकेंड ईयर में कर लूं। अगर मैं कोई कोडिंग, कोई लीडरशिप स्किल लिखने वाला हूं सीवी में, कहीं अगर मैंने कोई इवेंट मैनेजमेंट किया है, कहीं मैंने कोई कोर्स किया है, कहीं मैंने ऑनलाइन सर्टिफिकेट लिया है, कोई मैंने फील्ड लेवल का टेस्ट दिया है, कहीं मैं टॉप किया हूँ किसी एग्जाम में, आप पहले उनके लिए करो। कब? सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। फर्स्ट ईयर में आप सीवी भूल जाओ, फर्स्ट ईयर में उसका कोई रेलेवेंस नहीं कि आप सीवी के ऊपर फोकस करो। फर्स्ट ईयर में केवल सब्जेक्ट्स क्लियर करने पर, सेकंड ईयर में आप पॉइंटर भी बनाओ, और जो आपको सीवी में पुट करना है, सीवी में पुट कब करना है, जब आप 6 सेमेस्टर में एंटर करोगे। आप मेरे वर्ड्स, मेरे एक्सपीरियंस के साथ सुनना, मैं जो आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा बताया वो एप्लीकेबल सबके लिए होगा, बट मैं जनरलाइज वे में कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए। सीवी बनाना जो आप है प्रोसेस, वो 6 सेमेस्टर में स्टार्ट करो, पर उसमें जो लिखना है वो आप राइट फ्रॉम थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट कर दो। ओके। करेक्ट? आपको एक चीज तो क्लियर है, सीवी में कैरियर ऑब्जेक्टिव बन जाना है। और कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या बनना है? कैरियर ऑब्जेक्टिव बेसिकली वो समरी बननी है जो आपने सीवी में सारी स्किल्स आपने पजेस की हुई है, प्लस जिस कंपनी के लिए आप प्रोजेक्ट करने वाले, जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू के लिए आप अपियर होने वाले, उसको थोड़ा मैच करते हुए आपको करियर ऑब्जेक्टिव लिखना है। ओके। सेकंड जो हम लोग बनाते हैं, जनरलाइज टेबल बनाते हैं। मैं एक टिपिकल एक कन्वेंशनल बता रहा हूँ अभी तो। सीवी अब तो बहुत ज्यादा अलग लेवल पे चला गया सीवी, मतलब अब तो लिंक्डइन प्रोफाइल ही आ गया, मैं कहता हूँ। हाँ। बट हाँ, हमारे कॉलेज में सबसे पहले मैं सीवी की जो सेकंड है, जो टेबल है हमारा, वो 10 12 बीटेक परसेंटेज, वो भी फिलअप हो जाएगा। उसके बाद जो चीजें आती है, उसके बाद चीजें कौन सी आ जाती है कि आपके पास स्किल सेट कौन से है। करेक्ट? और स्किल सेट में एक चीज ध्यान रखना, जितने भी बच्चे सुन रहे हो, बोले इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, आप जितने बच्चे सुन रहे हो, एक चीज जरूर मेरे एक्सपीरियंस से सुनना, कहीं ना कहीं कोडिंग का थोड़ा बैकग्राउंड लिखना। आपको भले सी प्लस प्लस आता हो, कुछ भी आता हो, आपने 11 12 में सीखा, थोड़ा बैकग्राउंड अगर आपको क्लियर है, अगर वो फाउंडेशन क्लियर है, लिखना जरूर कि आपको कोडिंग में एटलीस्ट कुछ बैकग्राउंड है। करेक्ट? हाँ सर। इसके बाद आपकी कौन सी चीज आ जाती है? आपके सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो आप जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल में हमारे पास मैटलैब हो गया, पीएस कैड हो गया, पेसिम हो गया, सिविल में ऑटो कैड हो गया और सॉफ्टवेयर हो गए, मैकेनिकल में सॉफ्टवेयर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स से कुछ और हो सकता है, उनकी चिप डिजाइनिंग, वीएलएसआई रिलेटेड उनकी जो स्किल्स हैं, ये आपको कब एक्वायर करनी है? आपको थर्ड सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर में एक्वायर कर लेनी है स्किल्स, जो आपको अपनी ब्रांच से रिलेटेड कहाँ लगेगी, आपकी फील्ड, आपकी कंपनी में लगेगी, और जिसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग में जाना होगा। ऐसा नहीं आप ऑनलाइन कोर्स कर लोगे, ऑनलाइन सर्टिफिकेट ले लोगे, वो वैलिड। आप लोग एक चीज एग्री करते हो, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स से आपको जस्ट यस सर। आप लोग एक चीज एग्री करते हो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स में हम काम करते हैं, हमें सर्टिफिकेट मिलता है, पर ये सर्टिफिकेट सबके पास है। हाँ। है ना? यस सर। 60 स्टूडेंट की अगर बैच है, अगर कोई फ्री ऑनलाइन कोर्स सर्टिफिकेट वाला मिल रहा है, तो उसमें से 60 में से ऑलमोस्ट 20 25 15 तो ज्वाइन करेंगे ही। करेक्ट है? यस सर। अब जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो 25 में से अगर 2 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने कहा था 7 में से आप फिल्टर आउट होगे, 2 ही सिलेक्ट होगे, तो यहाँ 25 बढ़ जाता है आपका जब आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स ले रहे हो। तो इसको सेग्रीगेट करने के लिए अपनी स्किल थर्ड सेमेस्टर से रखना। कुछ आप टेक फेस्ट अटेंड करो, किसी आईआईटी, एनआईटी या किसी इंदौर प्राइवेट कॉलेज, भोपाल के कॉलेजेस के, जहां पर आप एक्चुअली वहां का स्टूडेंट का एक्सपोजर देखो थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में। और उसके बाद अपनी ब्रांच से रिलेटेड आपको किन चीजों को सीखने की जरूरत है। ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को रोबोटिक्स सीखने की जरूरत हो, ऐसा हो सकता है इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट को एआई सीखने की जरूरत हो और वो पैशनेट भी हो। हाँ। करेक्ट? तो थर्ड सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर एक ऐसा स्लॉट है जहां आपको जो कहते हैं ना को करिकुलर एक्टिविटीज, वो भी टेक्निकल वाली, वो डेवलप करनी है। ओके। 4 सेमेस्टर आपको मिलेंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। हाँ। इन 4 सेमेस्टर में आपको अपनी ब्रांच से रिलेटेड स्किल्स बाहर जाके डेवलप करनी है। ऐसा नहीं कंप्यूटर पे हमने 25 ऑनलाइन कोर्सेज ले लिए। अच्छा। करेक्ट? तो सर वो इसके टेक्निकल बाद स्किल्स रिज्यूमे में फिजिकली। इसके बाद अगली में रिज्यूमे
क्या आ जाता है, हमारी करिकुलर एक्टिविटीज जो आप किसी इवेंट में पार्टिसिपेट हाँ करोगे, कुछ हॉबीज आपकी, और हॉबीज भी नेचुरल बताना, प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग क्रिकेट या फिर लिसनिंग म्यूजिक, ये एक्टिविटीज पुरानी हो चुकी, थोड़ा कुछ अपने हिसाब से जो आपको जेन्युइनली फील होता है। जैसे मैं एक चीज एग्जांपल दूंगा, कुछ कुछ लोगों को जो टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, इंडियन एक्सप्रेस आता है, दैनिक भास्कर आता है, दैनिक जागरण आता है, नई दुनिया, उनमें किसी किसी को केवल एडिटोरियल पेज पढ़ना पसंद है। हाँ एडिटोरियल पेज क्या होता है, कोई पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, कोई मैनेजमेंट फंडा हो सकता है, वो पढ़ना पसंद है। उसको अपने हॉबीज में लाना कि हाँ फ्री टाइम में मैं इससे क्या करता हूँ, मेरे कुछ लिखने की कोई राइटिंग स्किल है इसके बारे में, हो ओके सकता है आपकी पॉलिटिकल व्यूज के बारे में राइटिंग स्किल हो सकता है क्रिकेट मैच के बारे में हो, ये चीजें खुद डेवलप होगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा, बजाय कि लिसनिंग म्यूजिक, वॉचिंग क्रिकेट, ये स्किल, ओके। ये हॉबीज नहीं होती बिल्कुल, है ना। तो ठीक है, मतलब अब जो इसके बाद, डेवलपमेंटल हॉबीज इसके हैं। बाद रिज्यूमे में जो नेक्स्ट लेवल देखा जाता है कि आप कितना ज्यादा कोलैबोरेट करना चाहते हो, कितना ज्यादा अच्छा एक टीम मेंबर बनना चाहते हो। आप एक चीज जान लो, आपको कोई भी रोल कंपनी में इंडिविजुअल कभी नहीं दिया जाएगा। आप पहले सॉफ्टवेयर ज्वाइन करो, कोर कंपनी ज्वाइन करो, आप ऐसा नहीं कि अकेले जाओगे। जो हिंदी मूवीज में होता है ना, एक लीड एक्टर जाता है, हीरो जाता है, वो पूरी फाइट करता है, वैसे यहाँ नहीं होता। कंपनीज में आपको रियल फैक्चुअल वर्ल्ड में आना होगा, जहां पर आपको एज अ टीम मेंबर ही हर काम जगह, करना कितने भी होगा। सीनियर रोल पर चले आओ, आपकी टीम होगी और आप उसके जस्ट मेंबर हो सकते हैं। हाँ, कभी कभी उस टीम में आप हेड बनाए जा सकते हो, सीनियर बनाए जा सकते हो, लीड इंजीनियर, जैसे आपको टीम मेंबर बनाया जा सकता है, फिर टीम लीडर बनाया जाता है। सॉफ्टवेयर वाले तो अच्छे से जानते होंगे इस चीज को। हाँ तो आपको अपने रिज्यूमे में पहले ये बताना है कि इवन दो यू हैव एक्वायर्ड ऑल द स्किल्स, आपके पास कैरियर ऑब्जेक्टिव पॉइंटर्स हैं, आपका जो प्रोजेक्ट्स है, अभी प्रोजेक्ट्स में बाद में जाऊंगा टेक्निकल में, आपने सॉफ्टवेयर से ले लिए, आपको सारी इवेंट हॉबीज वगैरह सब आता है, बट यू बिलीव इन टीम वर्क। ओके। तो ऐसी स्किल शो You're a करने good की। team member and you can bring positive results on table. You can bring results on table provided a good team, you are a member of a good team or you are a good team member. ओके। ये रिज्यूमे हो गया हमारा क्लियर। हाँ अब मैंने आउटलेस ही नहीं बताया कि आपको सॉफ्टवेयर कौन से लेने हैं, कौन से, क्योंकि हर ब्रांच के अलग होंगे। इलेक्ट्रिकल मैंने बताया मैटलैब, पीएसएम, पीएसकेट, ईएमटीपी, ये सारे सॉफ्टवेयर। केमिकल के अलग हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अलग हो सकते हैं, बट अब एक आउटलेट समझ गए। हाँ अब अगला लेवल आता है कि इंडस्ट्री को क्या रिक्वायरमेंट है। आप एक चीज जान लो, जो आपने सीवी बना लिया है ना, वो आपको 6 सेमेस्टर तक रखना है। मैंने बोला ना आपको, हाँ 3rd 4th 5th 6 सेमेस्टर तक आपका सीवी एटलीस्ट टेबल पर आने की कंडीशन में हो जाए। ऐसा नहीं हो कि कंपनी आ रही हो और एक दिन पहले आप बना रहे हो। ओके। इसके बाद 6 सेमेस्टर के बाद रियल वर्क स्टार्ट होता है, जो आपका 7th सेम है, कि यू नीड टू सी द कंपनी प्रोफाइल्स, यू नीड टू सी द जॉब प्रोफाइल। सर करेक्ट। और ऐसा हो सकता है इवन 5th 6th सेमेस्टर में भी कि आप कंपनीज की प्रोफाइल पहले विजिट करें। आप रिवर्स कर सकते हो, कंपनीज की प्रोफाइल पहले विजिट करो जिनमें आप इंटरेस्टेड हो, उनके जॉब रोल या जॉब मॉडल देखो, रोल मॉडल देखो, उसमें क्या करना है, और उसके हिसाब से स्किल्स भी डेवलप कर जाओ राइट फ्रॉम 5th सेमेस्टर। तो अगर आप 5th सेमेस्टर से करो तो 8th सेमेस्टर तक आप स्किल्स भी एक्वायर कर सकते हो। इससे और ज्यादा बेनिफिट है कि आपको रिक्वायरमेंट पता है पहले कंपनी, ऐसा नहीं ओके। आपने पहले ही सीवी बना के रख। हाँ गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था कि अपन जब ये सब कर रहे होते हैं सर, इज देयर एनी प्रोबेबल वे या फिर कोई अच्छा प्लेटफॉर्म है ऐसा वैसे ध्यान दे सकें, कोई आपके थ्रू जैसा कोई रिकमेंडेबल हो शायद से फॉर दीज थिंग्स, क्या? कि कंपनी का प्रोफाइल लेआउट और ये सब करने के लिए? देखो, एक चीज आप लोग सब एग्री करते होगे कि स्कूल लेवल में हम लोग क्रिएटिव डिजाइनिंग पेंटिंग्स नहीं बना रहे होते हैं। हाँ कुछ हम लोग किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, हमारे अंदर कुछ क्रिएटिविटी होती है। कुछ क्रिएटिविटी होती है कि अगर कुछ चीजें अरेंज हैं तो उन्हें एक मोर बेटर वे में अरेंज करना, उससे एक मैसेज पहुंचाना। कुछ लोगों के अंदर होती है वो चीज कि एक मोर बेटर वे में मैसेज पहुंचाना। हमारा सीवी भी ऐसा ही है। सीवी में हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स लग गए हैं, करियर ऑब्जेक्टिव लग गया है, मार्कशीट्स की टेबल लग गई है, स्किल्स लग गई है, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की वो भी हमारे पास है, जो हमारे पास अदर को करिकुलर एक्टिविटीज वो भी हमने कर दी है। अब ये आपके ऊपर है। हर, मैं इसलिए नहीं कहता कि सीवी का एक फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज नहीं, सीवी का, रिज्यूमे का फॉर्मेट चेंज होता है हर कंपनी की प्रोफाइल के साथ। करेक्ट। अगर आप आईआईटी एनआईटी में जा रहे हो इंटरव्यू देने, तब आपका रिज्यूमे अलग हो सकता है। अगर आप कंपनी में जा रहे हो आपका रिज्यूमे अलग हो सकता है। अगर आप एकेडमिक्स में जा रहे हो आपके रिज्यूमे का जो सिंटैक्स स्ट्रक्चर है वो अलग हो सकता है, और होता ही है। करेक्ट। तो ये चीज है कि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट नहीं बनता। हाँ, यू शुड बी क्रिएटिव इन योर माइंड कि मैं किस रिक्वायरमेंट के लिए जा रहा हूँ, मैं किस जॉब के लिए जा रहा हूँ, और उनमें मेरी किन स्किल्स को ज्यादा प्रोजेक्ट करना है, किन स्किल्स को कम प्रोजेक्ट करना है। ओके सॉरी सर, देयर वाज जस्ट अ प्रॉब्लम, नाउ आई एम ओके। अब एक छोटा सा 1 मिनट का एग्जांपल
एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ आप में से बहुत लोग एग्री करोगे, जो भी फॉरेन जाओगे एमएस के लिए और जो लेवल का आप इंडिया में सीवी बनाते हो कंपनीज के, वो बिल्कुल भी वहां नहीं चलता। हाँ आपको सबसे पहले जब हायर स्टडीज में जाते हो एमएस के लिए बाहर अब्रॉड गए, किसी भी यूरोपियन कंट्री, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया चले गए, किसी और भी कंट्रीज में चले गए, आपको सबसे पहले पता है सीवी भी नहीं देखा जाता, आपका सबसे पहले देखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एसओपी। अच्छा यस और नो? यस ये मैं सर फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। एसओपी देखा जाता है, और कई जगह तो आईआईटीज एनआईटीज में आजकल मास्टर्स में भी एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। उसके बाद आपको लगता है एलओआर, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो आपको अपने डिपार्टमेंट से साइन करवाना होता है, जो आपको अपने प्रोजेक्ट गाइड से साइन करवाना होता है, जो आपको अपने एचओडी से भी प्रोजेक्ट गाइड, जो मेजर माइनर में रहे आपके प्रोजेक्ट, और जो एचओडी है आपके डिपार्टमेंट, उससे एक आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, आप कि जब भी आपने किसी क्या चीज के लिए वर्क जा रहे किया। हो, इवन इंडस्ट्रीज में भी जाते हैं, कई बार मांगा जाता है। और कई बार ऐसा होता है जब आप इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लेते हैं, then they send a mail to your concerned faculty, to concerned principal sir, to concerned HOD sir, कि whether this student is good in other domains or not, ये मतलब कैरेक्टर वाइज भी कैसा है, ये मतलब टिकेगा या नहीं। कई बार मुझे आते हैं स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट कहते हैं सर हमारी कंपनी से एक मेल आएगा, प्लीज आप चेक कर लीजिएगा और अपने अकॉर्डिंगली अप्रोप्रिएट आपको जैसा लगे कि मेरा बिहेवियर, मेरा कैसा रहा है 4 साल में परफॉर्मेंस, उसके हिसाब से आप रिकमेंड कीजिएगा। तो हमारे पास वो मेल आते हैं स्टूडेंट के कि सर कंपनी से हमारी एक मेल आने वाला है। ओके तो ये चीज कह रहा हूँ कि रिज्यूम में चेंज होता है, और आपको बस ये चीज रखनी है कि आप कहाँ जा रहे हो उस रिज्यूम के लिए। सर नेक्स्ट पॉइंट जो होगा कि अपना जो कोर ब्रांचेस का प्रॉब्लम है कि हाँ प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी नॉर्मली सॉफ्टवेयर यानी कि सीएस और आईटी की साइड से आती हैं कॉलेज में अपने। सर वो कोर ब्रांचेस के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ कोर ब्रांचेस की कंपनीज उतनी आ नहीं रही हैं, बच्चों के प्लेसमेंट बहुत ही कम हो रहे हैं। सर हाउ डू वी गो ऑन सॉल्विंग दैट एंड हाउ डू द स्टूडेंट्स फेस दैट, कि वो कैसे सॉल्व करें अपने पर्सनल लेवल से? देखो, मैं सबसे पहले स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा, क्योंकि हमारा इमीडिएट जो अभी रिक्वायरमेंट है वो क्या है, स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो। हाँ यस और नो? यस सर। मैं मतलब सिस्टम लेवल के जो बाकी चीजें हैं उन पर नहीं जाता। सबसे पहले मेरा ये, अगर मैं स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे सबसे पहले है कि अगर मुझे जॉब चाहिए फाइनल ईयर में, करेक्ट, और हर स्टूडेंट को, हर जो भी जितने 330 स्टूडेंट्स हैं एक बैच में, 60 60 65 मल्टीप्लाई 60 प्लस 30 सिविल में, उनको जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो एक चीज कहूंगा सारे स्टूडेंट को, अगर आप सीनियर मानते हो, फैकल्टी मानते हो अपना, कि आप में से आपको ही एक लेयर सबसे पहले एक स्टूडेंट का बनाना होगा, क्लब बनाना होगा। जैसा कि मैंने कहीं देखा, जो टीपीओ सेल का क्लब बना है एटलीस्ट आपका, यस और नो? टीपीओ सेल का जो क्लब है स्टूडेंट का, आप अपने आप को कितना अच्छा प्रोजेक्ट कर सकते हो कि नहीं, वी हैव अ टैलेंट ऑफ फुल ऑफ टैलेंट हियर। अच्छा ये स्टूडेंट, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सर स्टूडेंट क्यों करेगा, सिस्टम क्यों नहीं करेगा। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने पिछले जो जॉब ज्वाइन किया था, आरआईडी था इस्लामपुर महाराष्ट्र में, अच्छा वहां पर डिफरेंट क्लब्स हैं स्टूडेंट के। तो ओके वहां पर एक क्लब जैसे होता है कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में भी क्लब है, जहाँ स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर फाइनलिस्ट सबके इन्वॉल्व है। अच्छा फाइनल ईयर के कम इन्वॉल्व रहते हैं क्योंकि उनको इंटरव्यू के लिए अपियर होना, थर्ड ईयर के भी थोड़े से कम क्योंकि उनको प्रिपरेशन मोड में जाना जाता है। ज्यादातर लीड दी जाती है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर स्टूडेंट को, ताकि उनका एक तो कम्युनिकेशन, एक बॉडी लैंग्वेज, और उनका जो एक होता है ना झिझक होती है जब हम बाहर आते हैं 12th के बाद, तो वो निकल सके, वो कम्युनिकेशन कर सके, मिल तो सके, प्रोफेशनलिज्म लाते हैं बच्चों में। तो आप लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट को, तो एक जो हमें देना है, जो आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का स्टूडेंट का सेल है, उसमें स्टूडेंट ऐसे हो जो विजिट करके आते हो, जो थोड़ा कंपनी से कांटेक्ट रखते हो। मैं अभी सिस्टम पर भी जाऊंगा, कॉलेज पर भी जाऊंगा, बट हाँ एक रिक्वायरमेंट तो जानते हो नहीं कि प्लेसमेंट या जॉब स्टूडेंट को है चाहिए। हाँ सर। करेक्ट। तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो एज अ स्टूडेंट मैं क्या कर पा रहा हूँ अपनी जॉब क्रिएट करने के लिए फ्रॉम फर्स्ट ईयर, या एज ए स्टूडेंट मैं अपने सीनियर के लिए क्या कर पा रहा हूँ। और जब आप सीनियर बन जाते हो, थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आपके कॉन्टेक्ट बन जाते हैं, तो मैं अपने जूनियर के लिए क्या कर पा रहा हूँ। जैसे आपने अभी देखा, मैं यहाँ का अलुमनाई हूँ। जब मैं यहाँ वापस आया तो आप मेरे बहुत सारे वीडियोस देखोगे जो मैंने अपलोड किए, जो चेंजेस हमारे सिस्टम में हम एनपीए फैकल्टीज के आने के बाद हुए हैं, तो हमने अपलोड किए। तो स्टूडेंट कैन रिलेट कि नहीं, एज ए अलुमनाई, एज ए सीनियर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी बनती है, क्योंकि आप सिस्टम को अच्छे से जानते हो। ये स्टूडेंट लेवल पर। अब कॉलेज लेवल पर, टीपीओ सेल लेवल पर ये कह सकते हैं कि हमें जो कहते हैं ना कि पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर अपने टीपीओ सेल को वेल प्रोजेक्शन देने की जरूरत है। मैंने आपसे एक बात की थी, जो आजकल एक प्रमोशन मार्केटिंग वाला दौर है ना, तो इसमें कहा जाता है कि इवन अगर लेस टैलेंट भी है कहीं इंदौर के इंस्टीट्यूट में, तो जो कहते हैं ना कंपनीज का प्रेफरेंस ये होता है कि हमें अप्रोच
अप्रोच कौन कर पा रहा है और हम कितना उस कंपनी के साथ कोलैबोरेट हैं। अच्छा। तो उसमें चीजें, अब मैं स्टूडेंट लेवल पे फिर आता हूँ कि ये भी रिलेट करता है कि आपके माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट कैसे हैं। हो सकता है एक अच्छी कंपनी आ जाए और वो 60 स्टूडेंट में से, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैकेनिकल हो गया, 60 स्टूडेंट में से जब वो प्रोजेक्ट्स देखे ना, माइनर प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट, उन्हें लगे कि बच्चों ने कुछ किया है। ये मैं कब अज्यूम कर रहा हूँ, जब कंपनीज आ रही है। हाँ, अरे तो फर्स्ट उन्हें सारे पुल करना स्टूडेंट पड़ेगा। एटलीस्ट जितने सुन रहे हैं, थर्ड ईयर फाइनल ईयर पे अपने माइनर प्रोजेक्ट मेजर प्रोजेक्ट का हार्डवेयर बनाए तो, और उसकी रिपोर्ट्स अच्छे से रेडी रखें। अगर एटलीस्ट ये तो मानते हो कि अगर हमारा टीपीओ में प्लेसमेंट नहीं हुआ है कॉलेज में, कंपनी में, तो ये जहां भी रिपोर्ट जानी है बाहर तो अच्छी जानी है। अगर अच्छी बनी और काम हुआ तो, अगर हमें यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी तो बाहर तो मिलेगी, इस प्रोजेक्ट से एटलीस्ट टेक्निकल एबिलिटीज दिखेगी। सेकंड आते हैं अब सिस्टम कॉलेज लेवल पर, कि हमें अपने टीपीओ सेल या हमें अपने जो कंपनीज हैं उनके साथ कोलैबोरेट कैसे करना है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं हद तक मैं अपने ऊपर भी मानता हूँ कि मेरे कितने एज अ फैकल्टी, मेरे कितने कॉन्टेक्ट्स है आउटसाइड वर्ल्ड में, और मैं उनमें से कितनों को यहाँ ला सकता हूँ। ये मैं अपने इंडिविजुअल लेवल, मैं सबको बात नहीं करता, वो होल लेवल। मैं अगर यहाँ का एलुमनाई हूँ, मैंने अगर जॉब की है, रिसर्च में है, तो मैं यहाँ कितनी कंपनीज या कितने लोगों को विजिट करने के लिए ला रहा हूँ। अब वो नेसेसरी नहीं हो सकता कि प्लेसमेंट के तौर पे है, वो हो सकता है कि मैं स्पीकर किसे बुला रहा हूँ किसी टेक्निकल वेबिनार के लिए, वो हो सकता है कि मैं किसी टेक्निकल वर्कशॉप के लिए, किसी कॉन्फ्रेंस के लिए किस गेस्ट को, कितने गेस्ट को बुला पा रहा हूँ। यार फैकल्टी पर होता है। अब क्या होता है, जब इंडस्ट्री छोड़ दो, अभी कोई भी एक्सपर्ट किसी चीज का, आपकी फील्ड का अगर यहाँ विजिट करता है तो वो बच्चों से इंटरेक्ट जरूर करते हैं और बच्चे भी इंटरेक्ट उनसे जरूर करते हैं। तो आपका एक ऑलरेडी जो कहते हैं ना, बाहर एक जा रहा होता है स्टूडेंट्स का इमेज कि ओके देयर इज अ गुड पूल ऑफ टैलेंट, देयर इज अ गुड बंच ऑफ स्टूडेंट्स हु आर रियली गुड। आईआईटी अगर मान लो गांधीनगर हो गया, किसी इंडस्ट्री से हो गया, तो ये मैं अपने लेवल पे मानता हूँ कि हमें बुलाना चाहिए और हम बुलाते भी हैं बिल्कुल। कोई वेबिनार्स हुए, और कहीं कहीं जगह अगर हम लोग अभी नहीं कैपेबल होते तो हम लोग ऑनलाइन वेबिनार्स, ताकि स्टूडेंट डायरेक्टली आउटसाइड वर्ल्ड से जुड़ सके, तो ऑनलाइन वेबिनार्स हो गए। इससे क्या होता है, आपको बाहर का कनेक्शंस मिलने शुरू होते हैं। आपको एक चीज, ये तो रेलेवेंस मानते हो, आप सीवी बनाना और बाहर कॉन्टेक्ट या डॉट्स कनेक्ट करना, ये अलग बात है। तो एज अ फैकल्टी मैं कह सकता हूँ, जैसे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि स्टूडेंट को सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा रिसर्चर्स, प्रोफेसर से इंटरेक्ट कराया जाए। अब उनमें से हो सकता है कि कोई भी कभी रिकमेंड कर दे किसी इंडस्ट्री को कि सर आप इस कॉलेज का ये डिपार्टमेंट विजिट कीजिए, एक बार विजिट कीजिए, आप बस प्लेसमेंट मत लीजिए, पर एक बार विजिट करके देखिए यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, अच्छे हैं, ओके। अरे तो हमें दोनों लेवल पे काम करने की जरूरत है, स्टूडेंट को भी और एज अ फैकल्टी में अपनी बात, एटलीस्ट हम हमारे सीनियर फैकल्टी सबकी बात कह सकता हूँ कि हाँ, हमें ये सॉल्यूशन देने की जरूरत है। मैं प्रॉब्लम डिस्कशन करता हूँ, बट सॉल्यूशन क्या है उस चीज का, और मेरे एंड पे क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मैं उसकी बात जरूर कर सकता हूँ। ओके सर, एक और थी चीज़ कि अब अपना डिस्कशन हो गया है, रेज्यूमे पे, प्लेसमेंट्स पे हो चुका है, और थोड़ा बहुत कोर प्रॉब्लम्स पे भी हो चुका है स्टूडेंट्स की। सर अब एक और क्वेश्चन था मेरा कि ऐसा आई हर्ड कि थोड़ा सा ना अपना प्रोग्रेसिव बिहेवियर नहीं है अपने स्टूडेंट्स में, थोड़ा सा आई हैव हर्ड एज सच कि कुछ सीनियर्स की कुछ ऐसा है थिंकिंग है कि उज्जैन या फिर अपना कॉलेज उतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है कि प्रोग्रेसिव बिहेवियर कैसा हो। एज यू सेड फॉर सीवी कि अपने को बाहर फेस्ट अटेंड करनी चाहिए, तो ऐसी केस में क्या सजेशन देंगे सर आपकी इम्प्रूव हो, और बच्चों का जो रहेगा कि माइंडसेट जो रहे वो फ्यूचर की तरफ लीड करे कि हाँ दे वांट टू बी एट अ हायर पोजीशन। चलिए मैं एक छोटा एग्जांपल दूंगा। हाँ, 2010 जब मैं थर्ड सेमेस्टर में था, ओके, आई विजिटेड ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर, एक रोबोटिक्स की वहां पर वर्कशॉप थी 5 दिन की। और भले हमारा थर्ड सेमेस्टर तक कोई प्रोजेक्शन बना हो या ना बना हो रोबोटिक्स को लेकर, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में आपके प्रोजेक्ट, हमारे इलेक्ट्रिकल में क्या सर्किट या फिर सिग्नल सिस्टम सब्जेक्ट होते हैं, बट एटलीस्ट आई विजिटेड वन इंस्टीट्यूट इन थर्ड सेमेस्टर। यस और नो? यस सर। तो अब जब आप उज्जैन से बाहर निकलोगे अपने थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर में, ये 3 सेमेस्टर ऐसे रखो, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर, जहां आप अगर ज्यादा ग्वालियर नहीं, आप इंदौर लेवल पे एटलीस्ट जाओ। मैं ये भी समझता हूँ कि स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशंस उतना नहीं है यहाँ पर, तो कई बार फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन है कि 200-250 रुपए लगेगा, 500 रुपए लगेगा इंदौर जाने का, कॉलेज में खाने का पैसा लगेगा, उसकी वजह से रेस्ट्रिक्शन है। बट थोड़ा आपको कहते हैं ना करियर के लिए इन्वेस्ट करने की जरूरत है, कि एटलीस्ट आप इंदौर का कोई एक टेक फेस्ट भी अच्छा मिल गया आपको थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में, आप एक एक्सपोजर लेके आ गए, आपको एक पता चल जाएगा बाहर के स्टूडेंट ऐसे हैं, ओके, बाहर के स्टूडेंट ऐसे हैं,
अगर मेरे यहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, अगर मेरे कॉलेज में इन्वायरमेंट नहीं है, तो एटलीस्ट जॉब मुझे तो चाहिए ना। हाँ मैं ये तो कह सकता हूँ, मैं ट्रिपल आईटीएम ग्वालियर जाके आया 2010 में। मैं समझ गया कि ओके ठीक है, हमारे कॉलेज में नहीं भी हो सकता है, कुछ बच्चे हैं नहीं है, बट आपकी खुद की तो कुछ प्रोजेक्शन होते हैं कि नहीं, मुझे तो जॉब चाहिए ना, हाँ मुझे अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है, तो आपको खुद को बाहर निकालना होगा। ओके। तो सर हम लोग को ठीक मतलब है, ये आपने जैसे बोला आप ट्रिपल आईटी गए थे 2010 में, तो वी शुड बी अटेंडिंग इन दीज 3 सेमेस्टर्स वेरियस प्लेसेस एज मच एज वी कैन टू अंडरस्टैंड एज व्हाट मच इज। नहीं, एज मच नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब 3 या 5 अटेंड करो। आप एक भी जाओ, अगर 5 दिन का अच्छे से अटेंड करके आओ, कुछ कॉन्टेक्ट्स लेके आओ, कुछ कॉन्टेक्ट नंबर्स लेके आओ, कुछ मेल आईडीज लेके आओ, कुछ ग्रुप्स लेके आओ, जिनमें आप बाद में मेंबर बन सको, जिनमें आपको अपडेट्स मिले। ओके। करेक्ट, ऐसा नहीं है 5 7 10 हम लोग कितनी भी नंबर्स कर रहे हैं और आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा। हम्म। आप 2 वर्कशॉप अटेंड करो, 2 सॉलिड वर्कशॉप अटेंड करो, जिसमें आपने सीखा भी है, आपने सर्टिफिकेट भी लिया है, आपने कॉन्टेक्ट भी बनाए, और आपको एक आउटसाइड सिटी कहता है ना, एक थोड़ा बाहर हाँ अलग सिटी का डायनेमिक्स आपके अंदर आ गया, सिटी का वाइब आ गया, कि आप इंदौर विजिट की तो इंदौर का वाइब आ गया, भोपाल विजिट के भोपाल का वाइब आ गया आपके अंदर, तो वो 2 3 साल या 1 साल 6 महीने 3 महीने 1 हफ्ता आपको कम से कम मोटिवेट करेगा। ओके। तो सर मतलब कि वही है, अगेन रिजल्ट निकालना है अपने एफर्ट्स का कि हाँ अपन ने वो टाइम इन्वेस्ट किया है तो उसका कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, और कनेक्टिविटी बनानी शॉर्ट है। में कहूंगा, अगर आपको जॉब के लिए बाहर जाना है, फाइनल ईयर के बाद जॉब के लिए बाहर जाना है, तो बेटर प्रेफर करो आप अपने सेकंड या थर्ड ईयर में पहले एक बार बाहर जाके आओ, वहां से अपने इनपुट्स लेके आओ, वहां से अपना एक्सपीरियंस लेके आओ। फिर आप कॉलेज में पता है बहुत ज्यादा कहते हैं ना, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहोगे कि मुझे करना क्या है। ओके, कंफ्यूज नहीं रहेंगे मतलब सर। करेक्ट, करेक्ट। यस सर। यस। सर आपके हिसाब से अगर कुछ और शेयर करना है कि अपना हो सके कि इन सब प्लेसमेंट्स इन सब चीज़ों में कुछ आपके हिसाब से कुछ रह गया हो, इफ़ यू वांट टू शेयर। मैं प्लेसमेंट सेल में अभी इसलिए नहीं जा रहा कि मैं सबसे पहले स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं, हम्म। हमारी प्रोफाइल कैसे बना सकते हैं। हम्म। लेटर से हमारा सिलेक्शन यहाँ नहीं होता है किसी कंपनी में, तो मेरा ये है एज अ सीनियर तुम्हारा, कि अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पर कंपनी आती है और नहीं होता है, या नहीं आती है, और अगर उसे बाहर निकलना पड़ता है फाइनल ईयर के बाद, एमपी हुआ, महाराष्ट्र हुआ, गुजरात हुआ, कोई भी स्टेट हुआ, तो उसे अपने लिए कैसे रेडी होना चाहिए। थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आप एक हैबिट डाल दो, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में, मतलब कह रहा हूँ 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th और 8th सेमेस्टर, इन 4 सेमेस्टर में एक हैबिट डालो कि आप हर 3 महीने में अपने सीवी में एटलीस्ट 1 या 2 लाइन ऐड करोगे, जो आपने स्किल्स एक्वायर की है, या जो एक्सपीरियंस लिया है, या कोई सर्टिफिकेट लिया है, एक ना एक स्किल। मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल सारे सर्टिफिकेट ही डाल देना है कि 25 ऑनलाइन कोर्स की, नहीं। 5th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 7th और 8th में, इनमें हर 3 महीने में अपना सीवी एक बार वापस देखो, और देखो कि कुछ एडिशन हुआ भी कि नहीं हुआ। मैं कहता हूँ आपको, मैं जब 5th सेमेस्टर में पढ़ाता था लास्ट ईयर, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं क्लास में जाके पूछता था कि आप 3 महीने हो गए, अच्छा मैं अगस्त में आपको पढ़ाना शुरू किया, अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, आपने कुछ अपडेट किया, मुश्किल से 5 6 हाथ खड़े हो पाते थे। ये फैक्ट है, ये में कोई ऐसा नहीं है। 5th सेमेस्टर में पढ़ाया है, आप पूछना। अच्छा। कि जब मैं पूछता था अच्छा 3 महीने हो गए, कितने लोग हैं जिनका एक लाइन भी न्यू एडिशन हुआ है सीवी में, या कुछ लगा कि नहीं कुछ और ऐड करना चाहिए, जो पहले वाले रिज्यूमे था उसमें कुछ चेंजेस आ गए, कुछ लाइंस रिमूव कर दी हमने, कुछ पॉइंट्स रिमूव कर दी, कुछ नए ऐड हुए। तो आप जान के हैरान रह जाओगे कि आउट ऑफ अगर 30 बच्चे 40 बच्चे क्लास अटेंड करते हैं, उनमें से 5 या 6 हाथ उठ पाते हैं। सर वही मतलब चेंजेस लाने पड़ेंगे। एक मेजर डिफॉल्ट है कि हम अपने सीवी को अपडेट कितना करते जा रहे हैं, और अपडेट तब होगा जब आप सीखोगे। अच्छा। जब आप बाहर की चीजें समझोगे, रिक्वायरमेंट समझोगे, तब आप उसको पहले सीखोगे, फिर वो एक लाइन में आएगा, बस जस्ट एक लाइन में मेंशन होगा कि आपने इतना। आप कई बार ऐसा होता है 3 महीने की ट्रेनिंग, 1 महीने की ट्रेनिंग केवल एक लाइन में मेंशन होती है, सर रॉन्ग। यस सर। वेरी गॉड। हाँ, एक तो ये 3 महीने का आप एटलीस्ट, जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर स्टूडेंट है, हर 3 महीने में एटलीस्ट अपना रिज्यूमे जरूर देखें कि वो अपडेट हुआ है, और अपडेट होने के साथ वो कितनी रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच हो रहा है, बाहर की रिक्वायरमेंट्स के साथ कितना ज्यादा मैच हो रहा है। करेक्ट। गेट, मैं कहता हूँ गेट डू नॉट एक्सपेक्ट हैवी लाइक पीएसयूज, एमटेक या आईआईटी एनआईटी, बट मैं हर एक स्टूडेंट को कहता हूँ गेट एटलीस्ट आपका एक टेक्निकल जो फाउंडेशन है वो बना देता है। अच्छा, उसकी प्रिपरेशन आपसे मतलब। बाहर टेक्निकल
राउंड में अगर कोई पूछेगा टेक्निकल क्वेश्चन या न्यूमेरिकल वाइज कोई पूछेगा, आपका एटलीस्ट बेसिक क्लियर है। लोग मुझसे कहते हैं सर गेट का स्कोप है या नहीं है, कहीं ना कहीं गेट एस्पिरेंट्स के फेसबुक पेजेस हैं, उनमें लोग लिखते हैं कि वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। बट आप एक चीज तो एग्री करते हो, गेट आपको हर सब्जेक्ट में जो 10-12 सब्जेक्ट है उनमें पूरी तरीके से प्रोफिशिएंट बना देता है। हाँ सर। करेक्ट। अब हाँ, अलग अलग प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, नहीं मुझे जाना ही नहीं है टेक्निकल में, पर हो सकता है कहीं आप किसी चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप टीसीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में जा रहे हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं एक या दो मोमेंट पर ऐसा हो सकता है कि समझ में आ जाए कि नहीं यार, थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड होना था, थोड़ा और सॉलिड होना था। ओके सर। और एक चीज है जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, कुछ कुछ जो हमारे यहाँ चलते हैं कि हम हिंदी में बात क्यों नहीं करते, इंग्लिश में क्यों करते हैं, या फिर आपने मेरा पूरा पार्ट जो 1 देखा होगा, इवन वो पूरा इंग्लिश में है, अब मैं पूरा हिंदी में बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब हिंदी में हमें सिलेक्शन क्यों नहीं होता। आप में से एक चीज एग्री करते हो, कितने लोग अपना रिज्यूमे हिंदी में बनाते, क्या आप अपना रिज्यूमे हिंदी में बनाते हैं? मैं वो लैंग्वेज बैरियर जो हमारे थोड़ा सा है ना कि नहीं हिंदी, पहले तो हिंदी से इंग्लिश पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से आना है, ऐसा नहीं कि हिंदी भूल जाना है। आज भी हमें दोहा, छंद, रस, अलंकार 12th के 11th के जो पढ़े हुए हैं वो याद है और वो काम भी आते हैं चीजें, करेक्ट। बट अगर हमें जॉब में जाना है तो वहां रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड, सप्लाई, करेक्ट। अब कुछ चीजों का, मैं एक स्टूडेंट रहा हूं तो एक चीज जो मैंने देखी है, स्टूडेंट को हिंदी से इंग्लिश शिफ्ट करने में कई बार प्रॉब्लम आता है, जो मैं समझाऊं, और ज्यादा वो सोच हिंदी में रहे और इंग्लिश में लिखना, इंग्लिश में बोलना। एक चीज करो, एक न्यूज़पेपर या कोई आप क्रिकेट कमेंट्री देख रहे हो, कोई बॉलीवुड मूवी, कोई भी मूवीज कुछ भी है इंग्लिश क्रिस्टल, उसको एटलीस्ट अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देखना या सुनना शुरू करो। उससे क्या होता है ना, आप उसको समझ जरूर रहे हो, टेक्निकली आप उसको समझ रहे हो। अगर कोई पॉलिटिकल व्यू लिखा है आपको समझ में पूरा आ रहा है, यस और नो। कोई क्रिकेट की कमेंट्री हो रही है, आपको क्रिकेट पूरा दिख रहा है, तो कमेंट्री धीरे धीरे तो रिलेट कर पा रहे हो, तो उससे जब आपका माइंड इंग्लिश में धीरे धीरे सोचना शुरू कर देगा तो आपके इंग्लिश के वर्ड्स अपने आप निकलेंगे। हाँ। और ऐसा कहीं नहीं कहता कि पूरी इंग्लिश में दुनिया चलनी है, मैं अभी हिंदी में ही बोल रहा हूँ। हम जब कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं फंक्शन में जाते हैं, पूरा हिंदी में ही बात होती है ना। यस सर। हमें कहाँ जरूरत है अगर जॉब में, और इवन कोर जॉब में तो मैं सीधे सीधे बताता हूँ, कोर जॉब में इंग्लिश में बात ही नहीं होती, केवल मेल्स इंग्लिश में आते हैं, डिस्कशन हिंदी में होता है। बट जरूरत क्यों है, ये स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में समझने की जरूरत है कि इंग्लिश की जरूरत कितनी है और क्यों है। ओके सर। सर थोड़ा सा हमारे यहाँ वो कहते हैं ना कन्वेंशनल थिंकिंग है, थोड़ा चेंज कर लो अगर जरूरत हो। और ये भी बताता हूँ, आप कितने भी बिजनेस लीडर्स को, कंपनी लीडर्स को देखोगे, उनको इंग्लिश में उतने प्रोफिशिएंट नहीं है, मानते हो या नहीं? हाँ सर। कंपनी के लीडर्स, उनके सेक्रेटरी, इवन उनके पीएस इंग्लिश में पूरा लेटर लिखते हैं, जो भी मेल होता है ड्राफ्ट करते हैं। दे मे नॉट हैव प्रोफिशिएंसी, बट यू विल नॉट बी वर्किंग एज अ बॉस फ्रॉम द स्टार्टिंग। यस सर। आप एम्प्लॉय की तरह स्टार्ट करो, जो चीज की रिक्वायरमेंट उसको उतना सीखो। ये नहीं कहता हूँ कि पूरे, कहते ना कुछ, एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक स्कूल के जूनियर ने पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो इतनी वाली जो मोटी थी ना, वो सारे वर्ड्स मेमोराइज कर लिए। मेरा ही स्कूल जूनियर पूरी ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी मेमोराइज कर ली है, उसका कहीं प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ। क्यों? उसका बाद में बात होती है तो पता चलता है क्यों, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी क्या? नहीं ना, उतनी रिक्वायरमेंट है नहीं, उतना आपने समय गवा दिया। जिन चीजों के लिए आपको रिक्वायरमेंट्स में, स्किल्स में जरूरत थी, उतना आपने समय गवा दिया। तो एक चीज जानते हो, मेमोराइज करने की आजकल जरूरत है ही नहीं। आजकल गूगल है, ब्राउजिंग कर सकते हो आप लोग, तो कुछ चीजों में आपको मेमोराइज करने की, रटने की जरूरत है ही नहीं। और ये आपके बॉस भी जानते हैं। आपके बॉस आपसे आपका नॉलेज, विजडम, एप्लीकेशन लेवल पे जानना चाहते हैं, आपकी मेमोरी नहीं देखना चाहते। यस सर। सर एक छोटा सा और डाउट था कि एज अ 3rd 4th ईयर स्टूडेंट आपका होता है कि हाँ प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, कंपनीज आ रही हैं कॉलेज में, एंड बच्चों का हो रहा है, और स्टार्टिंग में क्या सिर्फ अपर क्रीम लेयर होती है कि हाँ ये 7 पॉइंटर्स जो हैं, 8 पॉइंटर्स जो हैं उनको ले रही है कंपनी। तो एज अ 3rd 4th ईयर स्टूडेंट आपका यहाँ पर थोड़ा सा ना प्रेशर बन जाता है कि नहीं यार मेरा नहीं हो रहा है, व्हाट शुड आई डू, कि सर वो कैसे हैंडल करें, क्योंकि लास्ट तक है तो उनको सेमेस्टर के वाइज भी प्रिपेयर करना है, पढ़ाई भी करनी है और मेंटेन भी करना है, एट द सेम टाइम उन्हें सीवी और ये सब भी देखना है। सो हाउ शुड अ स्टूडेंट बी शुड गो फॉर दैट? मैं इससे पहले एक पॉइंट ऐड करूंगा, बहुत सारे बच्चे गीसू के ऐसे मिलेंगे आपको 3rd ईयर फाइनल ईयर में, जो जॉब छोड़ दो, करियर छोड़ दो, सबसे पहले तो फैमिली प्रॉब्लम से सफर कर रहे होंगे, फाइनेंस लेवल पे सफर कर रहे होंगे। मैं तो
रियली रहा हूँ यहाँ पर। फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस हैं। गर्ल्स से आप जब बात करोगे ना, गर्ल्स जब आप इंटरेक्ट करोगे थर्ड ईयर फाइनल ईयर, उनमें से आपको रिप्लाई जरूर मिलेंगे कि अगर हमारा 1-2 साल या 6 महीने में जॉब नहीं लगता है तो हमारी मैरिज कर दी जाएगी। एक प्रेशर है जो मैं स्टूडेंट रह के जब आपस में बातचीत होती है, डिस्कशंस होते हैं, ये फील होता है। जो मेल जो स्टूडेंट्स बॉयज हैं उनके ऊपर प्रेशर है कि पापा पूछते हैं कि यार अब कितना और पहुंचाना है मंथली, आपको कितने महीनों तक पहुंचाना है, हो गया फाइनल ईयर। सो ये प्रेशर बहुत आएगा। और ये पता है कब से? फर्स्ट ईयर में कोई नहीं पूछता, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर बहुत टफ जाते हैं फैमिली साइड से भी। करेक्ट। तो एक कभी कभी जो सजेशन सबके लिए एप्लीकेबल नहीं हो सकता, कभी कभी अगर आपको लगता है आप किसी चीज में, जैसे कहते हैं ना, कोई कोचिंग पढ़ाने में, कोई कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाने में कुछ इन्वॉल्व है जिससे कुछ अर्निंग हो सके। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पूरी अर्निंग पे उतर जाओ, नहीं। यहाँ पर आपके सेमेस्टर रिजल्ट्स वगैरह सब्जेक्ट ज्यादा मैटर करते हैं। अगर किसी को वाकई में लगता है कि नहीं हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है, फैमिली प्रेशर ज्यादा है और जॉब का भी प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट सबसे पहले ग्रेजुएशन तो लेना जरूर। कोई डिग्री बीच में मत छोड़ना। एक एक्सपीरियंस मेरा पहला रहा है, पूरे कुछ स्टूडेंट ने पूरी इंजीनियरिंग छोड़ दी। सारे स्टूडेंट जितने सुन रहे हो, इंजीनियरिंग कभी मत छोड़ना। ये मेरी बैच में हुआ है, लोगों ने इंजीनियरिंग छोड़ दी कुछ मार्केटिंग या जो कहते हैं ना वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए। हाँ। और बाद में उनको रियलाइज हुआ 5 साल बाद कि यार डिग्री नहीं छोड़नी। कोई भी मेरे जूनियर हो ना, आप ये समझना, डिग्री मत छोड़ना। भले आपको कहीं से कितने भी लुक्रेटिव ऑफर्स आ रहे हो, ओके। डिग्री कंप्लीट जरूर करना, अच्छे से करना। बिल्कुल आपके जो चॉइसेस है, इंटरेस्ट है, प्रोजेक्शन से अलग अलग हो सकते हैं, डिग्री कंप्लीट करना सबसे ओके पहले, सर। अच्छे गुड पॉइंटर्स के साथ पूरी मेहनत लगे। फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन आएंगे, फैमिली रेस्ट्रिक्शन आएंगे, प्रेशर आएगा, मेंटल प्रेशर आएगा। ये कॉम्पिटिटिवनेस जो आपने बोला ना कि हाँ। कॉम्पिटिटिवनेस का प्रेशर तो इतना आएगा। आप फाइनल ईयर में एक बात देखना, अगर 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया ना, तो अगले जो 25 बच्चे हैं उनके ऊपर ऐसा प्रेशर आने वाला है जो रहेंगे कि आप मेंटली पूरे कहते हैं ना एक अलग लेवल पे चले जाओगे, डाउनवर्ड, कि यार 2 बच्चों का सिलेक्शन हो गया। हाँ। आप भले ये चीज को एग्री नहीं कर पाओगे वो 2 ज्यादा सुटेबल थे या कंपनी ने उनको फेवर दिया, बट आप मेंटली चले जाओगे नीचे। तो इसके लिए जो कहते हैं ना, शुरू से थोड़ा सॉलिट्यूड या कुछ बुक रीडिंग, जहां आपको थोड़ा कामनेस मिलता है, जहां आप थोड़ा कुछ समय के लिए अपने को कंपटीशन से दूर कर सकते हो, वो चीजें थोड़ी हॉबीज ऐसी रखना। कुछ का होता है ना जैसे नेचुरल प्रोजेक्शन, कोई इवनिंग वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कुछ कोई मतलब फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ते हैं, ऐसी चीजें रखना अपने फाइनल ईयर थर्ड ईयर के लिए शुरू से, कि आपको जब प्रेशर आए आप चीजें हैंडल कर सको और वापस अपने आप को ट्रैक पे ला सको। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। करेक्ट। आपका फाइनल एंडिंग जो हो ना, वो एंडिंग जो आपने जो प्रोजेक्शन रखा था कि नहीं जॉब चाहिए बॉस, वो मिलने, और उसके लिए आप हेल्दी हो उससे पहले, मेंटली और फिजिकली। तो मैं मेंटली लेवल पे बात कर रहा हूँ कि जब आपके फाइनल ईयर आएंगे, 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 1 बच्चे का, इवन दो आप एलिजिबल हो या नहीं हो, आपके ऊपर प्रेशर आने लगेगा। यस सर। और उसको जल्दी से जल्दी रिकवर करना, उस स्टेज से अपनी वर्किंग हेल्दी स्टेज में आना, अपनी वापस वर्किंग स्टेज में आना, फुल एफिशिएंसी के साथ आना, और फिर नए प्रोजेक्शंस देखना, नए डायमेंशन। और एक चीज है, मैं अपने जूनियर से कहूंगा, अगर आपका प्लेसमेंट नहीं हो रहा है येसू से या बाहर भी, वेट जरूर करना, पेशेंस जरूर रखना। हो भी सकता है 3 साल बाद, 2 साल बाद, 6 महीने बाद आपकी जॉब लगे तो आपको लगे कि नहीं, जो जॉब पहले वाली मिल सकती थी उससे तो अभी जो मिली वो बेटर है, कहीं गुना बेटर है। करेक्ट? यस सर। थोड़ा कहते हैं ना, पेशेंस, परसिस्टेंस और पेशेंस, और मेंटल लेवल बिल्कुल। हो सकता है आपके कुछ फ्रेंड्स हो, सर्कल अच्छा हो थोड़ा, जो आपको संभाल सके चीजों में, कि फाइनल ईयर में आता है प्रेशर डेफिनेटली। जब इवन आपका सॉफ्टवेयर में नहीं हुआ, आप सॉफ्टवेयर में बैठना नहीं चाहते थे, मैं आपको एक बताता हूँ एग्जांपल। आप सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड नहीं थे, पर जैसे आपकी क्लास से किसी का हो गया कोर ब्रांच से, आपको प्रेशर आ जाएगा। तो हैंडल करो थोड़ा, कामनेस, फोकस अल्टीमेटली। और एक चीज है, आप अपनी फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबल हो, आपका कोई वेट कर रहा है, आपकी कोई फैमिली वेट कर रही है, ये चीज ध्यान रखना। मेरे गेसू के जितने जूनियर्स हो, आपको भले जॉब अभी मिले ना मिले, 6 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, आपकी फैमिली आपका वेट कर रही है, वो आपको हेल्दी वे में देखना चाहती है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। और जॉब लगेगी, अगर कहीं दिक्कत आई तो बिल्कुल दीपक सर आपको मोटिवेट करने के लिए रहेंगे, आपको गाइडेंस देने के लिए रहेंगे। एज अ सीनियर मेरा रोल बिल्कुल बनता है कि करना चाहिए। ठीक है? Okay sir, thank you very much sir for your time, and I am sure everyone will be very happy for listening this by going through all of this.